وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس گفتگو کو آپ پورا ضرور سنیں۔ اس دیوبندی کی حقیقت کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ ان دیوبندیوں کے دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیوبندی دھرم میں، دیوبندی مسلک میں جھوٹ بولنا ضروری ہے، لازمی ہے، بلکہ شرط ہے۔ دیوبندی ہو اور جھوٹ نہ بولے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خیر، اس گفتگو کو آپ حضرات شروع سے لے کر لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دیوبندی جو ہیں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کے بھی دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا یہ بھونک رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے شان و عظمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو معاذ اللہ کافر بتاتے ہیں، کافر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے ہی اکابرین کو کافر ثابت کر جاتے ہیں، کیونکہ تھانوی، ننوتوی، امیٹھوی، گنگوہی کسی نے بھی اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان مانا۔ دوسری بات، تھانوی نے گواہی دی کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی تھانوی نے اپنا امام مانا۔ بہرحال، اور ان کو عاشق رسول مان رہے ہیں دیوبندی طبقے کے لوگ۔ تھانوی کا خلیفہ مرتضیٰ حسن دربھنگی وہ کہتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت ان دیوبندیوں پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ بہرحال، بہت سارے ثبوت الحمدللہ میں دے چکا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ آج اصل میں ٹائم نہیں ہے، بس اس میں زیادہ میں ایڈیٹنگ کچھ نہیں کروں گا، بس تھوڑے سے حوالے میں لگا دوں گا۔ آپ حضرات اس گفتگو کو پورا سنیں۔ ہلو، ہیلو، ہاں، ہلو، جی ہاں، اصل میں فون سے بات کر رہا تھا۔ چلیے، میں یہ کہہ رہا تھا، عارف صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ۔ ہاں، 2-3 مطالبہ کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے اور میں وہ مطالبہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیے جناب، آپ جو دوسرے نمبر پہ بات کر رہے ہیں، ہاں ہاں، بہتر ہے کہ آپ ان سے پہلے بات کر لیں۔ نہیں، میں کوئی اور بات نہیں کرے گا، میں بات کر رہا ہوں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور نہ میں آپ سے ابھی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ سے مطالبہ جی کر رہا ہوں۔ جی مطالبہ تو کرنے کا میرا حق ہے، کر سکتا ہوں۔ جو آپ نے استدلال کے طور پہ جو باتیں پیش کی ہے تو اس کا مطالبہ تو ہم کر سکتے ہیں نا؟ جی جی، کیا باتیں میں نے پیش کی ہیں وہ پہلے واضح کر دیں۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کے مولانا احمد رضا نے اللہ کو گالیاں دی ہے، جی، تو وہ کون سی کتاب ہے وہ؟ فتاوی رضویہ میں بھی ہیں، اچھا اچھا اور کیا بولتے ہیں، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اچھا، اس نامی کتاب کے اندر بھی اچھا اچھا، تو کیا وہ حوالہ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی الحمدللہ۔ فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ موجود ہے، اور وہ کیا نام ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ بھی موجود ہے نا؟ جی جی وہ ذرا آپ اس کو فوٹو کھینچ کر کے میرے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بھیج دوں گا، کوئی دقت کی بات میرا نمبر آپ نوٹ کریے، میں بول رہا ہوں آپ کو، چونکہ یا آپ ہی میں اپنا نمبر بتا دیجئے واٹس ایپ والا۔ نہیں۔ جی 97 21 59 42 30۔ ایک منٹ 97 21 59 42 30۔ جی اسی پہ آپ کا واٹس ایپ ہے نا؟ جی سنیے گا، ایک کام کریے گا، کتاب آپ کے پاس ہے یا موبائل میں وہ کتاب ہے؟ جی، کتاب آپ کے پاس ہے یا موبائل میں کتاب؟ نہیں PDF میں ہے۔ PDF میں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے 2-3 ورق آگے پیچھے، مجھ کو وہ آگے پیچھے سب کا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ بات نہیں سمجھ پا آگے رہے؟ پیچھے
हाँ, मतलब ये कि जिस सफ़े पे वो है ना, जैसे मान के चलिए मिसाल के तौर पे वो सफ़ा नंबर 10 पे है, ठीक है? तो मुझको सफ़ा नंबर 7 से लेकर के वो बात जो है मुझको सफ़ा नंबर 12 तक की वो तहरीर चाहिए मुझे। जी इंशाल्लाह भेज तो दूंगा। वो आप भेज देंगे? जी हाँ, वही मेरा मुतालबा है। और जी उसके अलावा जो है आपको मैं सब नंबर पे अभी कांटेक्ट करता हूँ उसका। अच्छा, एक बात ये एक तो ये मुतालबा हो गया और एक मेरा मुतालबा था, रुक जाइए। जी अल्लाह झूठ से, हाँ, और जो जिसमें वो क्या नाम है, आपने बताया हमारे किस आलिम ने ये बात कही है कि मलफूजात जो है हुज्जत नहीं है। मलफूजात हाँ, वो भी इंशाल्लाह भेज दूंगा। मैंने कहा किस आलिम ने ये बात कही है। जी आप ही के आलिम है, मैं इंशाल्लाह घर पहुंच के जो है हम्म किताब का जो वो स्कैन लगा दूंगा हम्म कि कौन से आलिम ने आपके कही है ये बात। ठीक है। अच्छा, और ये तो हो गया। और उसके बाद मैंने जो वो हदीस शरीफ पेश की थी, समझ रहे हैं, जी जी उस जी हदीस शरीफ की कितनी सूरतें हैं, क्या आप वो मुझे बता सकते हैं? वो मैंने आपसे पूछा था। अगर मैंने आप अपने आप को जाहिल होना तस्लीम कर लें फिर मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। जाहिल होना तस्लीम कर लें? जी ये कौन सी बात होती है? क्यों हम आप कह रहे एक आपने मिनट उस एक मिनट हदीस एक को पेश किया है ना बतौर हुज्जत बतौर दलील के। जी जी जी। ठीक है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैंने मैंने जैसे जो कि आपसे कहा कि इसकी कितनी सूरतें होती हैं और ये हदीस किसके लिए है, हाँ ये सारी बातें आपके जहन में हैं। हाँ, चलिए है ना। आप सुनिए, मैं बोलूं? अरे मैं पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब आप देते फिर अपनी बोले बात आप। मुकम्मल आप अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो जाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ ना, आप अपनी बात मुकम्मल करके चलिए खामोश हो जाइए। अभी मैं चलिए बोलिए। आपको जो मैंने हदीस शरीफ से आपने मुराद भी पूछा था, मैंने मुराद भी बताया था, वो रिकॉर्डिंग में जी बात मौजूद है। आपने उस हदीस शरीफ से पूछा क्या मुराद है, समझ रहे हैं? जी तो मैंने उस हदीस शरीफ के लिए ये कहा कि उस हदीस शरीफ में ये मुराद है कि अगर दो मर्द हैं, समझ रहे हैं, हम्म उनमें से किसी ने किसी को काफिर कहा, हम्म ठीक है, अगर उसके ऊपर कुफ्र जिसको कहा गया उसके ऊपर अगर हम्म कुफ्र सादिक आया तब तो जिसको कहा गया वो काफिर हुआ, ठीक है। हम्म और अगर जिसको कहा गया उसके ऊपर कुफ्र सादिक नहीं आया, ठीक है, हम्म तो कहने वाले पे कुफ्र पलटेगा। ये मैंने हदीस हम्म शरीफ की बात हम्म, सब खोल करके बता दिया आपको, समझ रहे हैं। फिर मैंने जी जैद बकर से भी इसकी मिसाल दी थी, ठीक है। जी जी मैंने इसको ये समझा है। अब ये बताइए कि अगर मैंने जी ये समझा है तो अगर ये गलत समझा है, ठीक है, पहले मेरी बात को समझिए। जी बोल लीजिए। मैंने आप पहले मेरी बात तो होने दीजिए ना। जी आपने हाँ बोलिए, वही तो मैं आपको मैंने इजाजत कहा दे कि रहा हूँ। अगर मैंने इस हदीस शरीफ से गलत समझा है, ठीक है, जी तो आप मुझे सही समझा करके मेरे मौकफ की तरदीद कर दीजिए कि नहीं आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझे हैं, आप गलत समझ। फिर उसके बाद जब आप उसकी तरदीद कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात जी है कि मेरी जहालत वैसे ही आम हो जाएगी। फिर जी आप जी फिर आप आप खामोश हो जाएं। हाँ, चलिए बोलिए। जी हाँ सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा मौलाना तुफैल साहब, जी। आप ये बताइए हम्म कि इस हदीस हम्म जो हदीस है बुखारी शरीफ में दीगर कुतुब में है, ठीक है, हम्म तो ये हदीस किनके लिए है? खवारिज के लिए है। हाँ, मैंने आपको बता दिया खवारिज, क्या खवारिज? ठीक है, खवारिज के लिए है ये। मतलब इसको खवारिज के लिए तो हम वही तो पूछना चाहते हैं कि हाँ खवारिज ठीक के है, लिए। अभी सुने मैं बता रहा हाँ हूँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ ये खवारिज के लिए हदीस है, ठीक है। हम्म अब मैंने आपसे इसके मुतालिक पूछा था कि इसकी कितनी सूरतें हैं, हाँ ठीक है। हम्म आपके ऊपर ये जवाब कर्ज है मेरा, इसको आप बताएंगे। दूसरी बात ये है कि इस हदीस ये जो हदीस है, ठीक है, इससे आपने जो मुराद बयान की है तो क्या इसके जाहिरी लफ्जों पर जो है कुफ्र का फतवा दिया जाएगा? जाहिरी लफ्जों पे? जी जाहिरी लफ्जों पे मैंने तो उसकी मुराद खोल करके बता दिया है यार। नहीं, जाहिरी लफ्जों पर आपने एक बात अभी कही मेरी। सुनिए अभी तो मेरी बात हो रही है, आप खामोश रहें। चलिए बोलिए। ठीक है। हाँ। क्या इसके जाहिरी मफहूम पर जो है किसी को काफिर कहा जा सकता है? जाहिरी मफहूम पे काफिर कहा जा सकता है? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ ना, खोल करके बात कीजिए ना। अल्लाह अकबर, आप मौलाना है, आलिम है, लेकिन आप जाहिरी मफहूम पे जो इसका तर्जमा है, सुनिए मेरी बात, इसका तर्जमा है और इसकी मुराद आपने इस हदीस शरीफ से क्या मुराद है, फिर आपने पूछा, मैंने मुराद भी बता दिया खोल करके
کہ دو لوگوں میں سے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، میں نے یہ ساری بات مانا ہے، وہ تو ظاہر بات اپنے آپ میں نے یہ ظاہری مانا ہے کیا؟ وہی تو میں وہی تو آپ کو سمجھا دیا نا، میں نے آپ کو بتا ہی دیا نا، پھر آپ اس کی تردید میں آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کو جاری رکھے نا، پھر آپ مجھ سے سوال کیوں؟ میں نے تو اپنا موقع پوری طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ جی آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس کے ظاہری مفہوم پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ارے یار میں نے تو پوری وضاحت کر دی، آپ کہہ رہے ہو نہیں، میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے آپ۔ ایک منٹ آپ سنیے میری بات کو، آپ کو میں نے پوری وضاحت جب یہ کر کے رکھ دیا۔ ارے میرے بھائی میں تھوڑی مختصر بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں نے وہی تو جواب دیا ہے، آپ کے سوال سے پہلے ہی میں نے آپ کو جواب پوری وضاحت کر کے مفہوم ہے، کیا اس ظاہری مفہوم پر کسی کو کافر قرار دینا صحیح ہوگا؟ میں نے تو یار اس کی پوری وضاحت کر دی، پوری وضاحت۔ یار صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا آپ اس کا جواب دیجئے۔ کیا چیز یار؟ پھر میں نے یہ پوری وضاحت جب کر دی۔ اب سنیے، آگے سنیے، ہاں آگے سنیں۔ جب پوری ایک منٹ سن لیجیے، اس حدیث کے متعلق، ہاں اس حدیث کے متعلق اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ ہاں تو اب یہ آپ جب میری دیکھو آپ نے مجھ سے پوری وضاحت لے لی ہے، پہلے دیکھو یار آپ اصل میں پھر جہالت والی، پھر وہی میں نے وہی بات میں کہوں گا، پھر وہی کروں گا۔ دیکھو آپ پھر میں وہی کہوں گا، سوال کا میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، سنیے، لیکن اب آپ سے میں سوال قائم کر رہا ہوں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو سوال میں نے میری بات اس حدیث شریف کے متعلق علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے، علماء سنت کا کیا مسلک ہے؟ آپ دیکھو میں بتا رہا ہوں، آپ کو سوال کرنے کا حق تب ہوگا جب میں آپ کو ہلو ہاں سنو میری بات تو سنو، مت کرو، سنو پہلے میری۔ آپ کو سوال کرنے کا حق تب ہوگا جب میں پوری وضاحت آپ کے سامنے نہ رکھوں۔ میں نے پوری وضاحت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ارے یار میں نے پوری وضاحت کر دی اس حدیث سے۔ یہ نہیں رہے، اس کے ظاہری معنی آپ بتا رہے ہیں نا۔ آپ اگر آپ وضاحت اس کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ میں نے جب آپ نے ابھی تو آپ نے تو ابھی اہل سنت کا دیکھو یار یہی اسی لیے ہم تم سے بتا رہے ہیں، اسی لیے ہم تم سے بات کرتے ہیں، تم ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے، اسی لیے میں وضاحت صحیح طور پر کر سکیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ تم خالی چلاتے ہو، سنتے نہیں ہو، تو تم بول چکے ہو نا تو مجھے بولنے دو نا، ابھی تک تو تم ہی بول رہے ہو، مجھے بولنے دو۔ طفیل رضا صاحب ہاں سنیں، اب آپ نے جو ہے کمالات اشرفیہ کی عبارت پیش کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف کی روشنی میں کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھو میں ابھی یہاں بات واضح ہو جائے گی جب میں خاموش رہ چکا ہوں، بات جو ہے کمال دیکھو پھر یہ جہالت کر رہے مکمل ہونے دیں، پھر یہ جہالت دیکھو یار، پھر یہ جہالت پوری بات اجازت دوں گا۔ جب آپ نے بات اپنی مکمل کر لی، اب یہ کمالات مکمل ہی نہیں ہوئی یار، ابھی مکمل نہیں ہوئی، مکمل ہونے تو دیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حدیث شریف فارسی کے لیے، سنیے میری بات، آپ نے پہلے جی ابھی آپ سنیں، خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ملفوظات کمالات اشرفیہ کی عبارت پیش کی، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بریلی والے کافر کہتے ہیں، لیکن مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کو کافر نہیں کہتے، اس وجہ سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کافر ہو گئے حدیث شریف کی روشنی میں۔ اچھا آپ یہ بتائیے بدعتی پر کفر کا فتویٰ ہے؟ پہلے اب ادھر سن لو میری بات کو، میرے بھائی جواب دیجئے، میری بات ادھر ادھر کی قسم کی باتیں دیکھو یار، تم اصل میں تم بولتے ہو تو سننے کا مادہ رکھو، صرف کالا یا پولو پڑھا ہے یا سمے یا سمو بھی پڑھے ہو، میں کیا بول رہا ہوں، کالا یا پولو ہی پڑھے ہو یا سمے یا سمو بھی پڑھے ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے؟ پہلے میری بات سنو تو ایک منٹ، بدعتی سے آپ کیا مراد لے رہے ہو؟ ایک منٹ، اسی کے متعلق میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ارے یار تو صرف تم ہی بولو گے یا مجھے بھی؟ اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں نا کہ تم بات کرتے ہو تو بات کرنے نہیں دیتے، ہم کو بھی تو بولنے دو، تم بول لیے ہو نا تو مجھ کو بولنے دو، مجھ کو بولنے دو نا، سنجیدگی کے ساتھ بات سنیے، سنجیدگی کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں، پہلے میری بات سنو، ہاں ٹھیک ہے، پہلے اب ایک جو تمہارا سوال ہے اس کو آپ نے ایک دم بالکل غور سے سنو، میں تم کو سمجھا رہا ہوں، تم نے اپنی بات کہی، میں نے بالکل ایک دم اطمینان اور سکون سے سنا، تمہیں بھی سننے کا حق ہے۔
अभी तो मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो आप सुने। पहले मेरी बात को सुनो, जो तुमको मैं पहले मेरी बात को सुनो। जब मैंने तुमको सारी बातें बता दी, ठीक है, पहले मैंने कहाँ सारी बातें बताई यार? तो खामोश रहो ना यार, मैं बता रहा हूँ ना, खामोश रहो। बताओ क्या विद्यार्थियों के ऊपर कुफ्र का फतवा है, बताइए। ताला यक़ूलो पढ़े हो या समिया यस्माऊ भी पढ़ा है तुमने? क्या जिहालत करते हो? विद्यार्थियों के ऊपर पहले तो फिर वही देखो, ये जिहालत कर रहा है, ये देखो, पहले बोलने तो दे यार। नहीं मैंने यह सवाल पूछना जहालत है क्या? हाँ तो सवाल जब मैंने अपनी पूरी वजाहत में तुम्हारे सामने रख रहा हूँ तो सुनो, जहालत है तो सुनो यार, फिर वही बात कर रहा जवाब नहीं दे रहे हैं तो जहालत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो सुनोगे जब ना, जब तुमको जवाब न मिले के ऊपर कुफ्र का फतवा तो है यार ये फिर बोलता नहीं। मुझे ये बताओ कि इसमें बिदाती कहाँ मुराद है? इसमें इस इबारत में जो तुम्हारे थानवी जो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें काफिर नहीं कहते, इसमें बिदाती किससे मुराद, तुम क्या मुराद दे रहे हो बिदाती इसमें, ये बताओ पहले। बिदअती ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग जो उन्वान कायम किया गया है, हाँ ठीक है, वो यही है, बिदअती के पीछे नमाज। बिदअती के पीछे नमाज, ये उन्वान है ना। और इबारत क्या है? इबारत क्या है? इबारत क्या है? हाँ इबारत तो पढ़ो, इबारत क्या है? जब उन्वान ये हेडिंग अरे यार उन्वान हेडिंग है, खामोश रहे। अच्छा सुनो मेरी बात को, तुम सुनो नहीं, तुमने बोला मैंने, तुम बोले मैं खामोश रहा, तुम बोले मैं खामोश रहा। देखो यही बात होती है। देखो पहले बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, आप जो है गलत इसका माना मफहूम, मैं गलत माना मफहूम नहीं लेता हूँ। मैं तुमसे जितना सवाल अभी तक तुमने ये बात जो जब हमारी किताब है, हमारे आलिमों ने लिखी है ये किताब, तो हम इसका सही माना बताएंगे, आप बताएंगे। उसमें सही माने के जब तुम उसकी पूरी वजाहत जब मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बताना। अभी मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं तुमसे जितना सवाल कर रहा हूँ तुम्हें देना है क्या? बिदातियों के ऊपर कुफ्र का फतवा, ये इसका जवाब देना आपके ऊपर है। इस इबारत में जो थानवी साहब से हुक्म कुफ्र, एक मिनट मेरी बात को सुनो। अगर बिदाती क्या मौलवी थानवी जो है बिदाती बरेलियों को मुराद ले रहे हैं कि बिदाती के मतलब ये मौलवी मुराद बरेली में मुराद है, ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हो मेरी बात को सुनो। अब एक बात बताओ कि क्या बिदाती जो है अगर किसी की तकफीर करे, मेरी बात को सुन लो, किसी की तकफीर अगर बिदाती करे, ठीक है, और अगर उसके ऊपर जो है कुफ्र सादिक न आए तो क्या वो बिदाती मुसलमान रहेगा या काफिर होगा? ये बताओ पहले, वही तो तुमसे पूछ रहे। सुनो बोलो, सुनो, चलो बोलो। बिदअतियों के ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। हम इसका जवाब इसलिए नहीं दे रहे कि ये सवाल मैंने इसका जवाब भेजा है ना, इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे थे। सुनिए, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसी इबारत में साफ वजाहत कर रहे हैं कि अगर हमने किसी को काफिर कहा, ठीक है, और हकीकत में वो काफिर नहीं है, तो ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये थानवी, एक मिनट अब सुन लो, अब नहीं सुने, लेकिन अगर कोई काफिर है और अगर उसको काफिर कहा तो क्या हर्ज? नहीं कहा तो क्या हर्ज है? अगर कोई काफिर है, अगर हमने उसको काफिर कहा तो उसमें क्या हर्ज? थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है। सुन लो अब सुन लो, की है। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई तो अब मैं बोलूं, बात मुकम्मल हो गई। हाँ सुन लो, देखो यार यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई। तो तुम्हारी बात कब मुकम्मल होगी? तुम्हारी बात हमको लगता है कयामत बीच में बोलते रहेंगे तो बात कहाँ मुकम्मल होगी? हाँ बोलो। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तावील की है क्या कि अगर वो काफिर नहीं है और हमने उसको काफिर कह दिया तो बहुत खतरनाक मसला है, क्योंकि तकफीर का मसाला जो है बड़ा नाजुक होता है। ठीक है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है, और जो तावील कर दे तो कुफ्र नहीं होता है। अच्छा, अब मैं बोलूं? आप पढ़ें जाके, मैं बोलूं? कराम की तशरीहात को पढ़ें, मैं बोलूं ना, कराम की तौजीहात को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आपकी तकरीर अगर मुकम्मल हो गई तो मुझे इजाजत देंगे आप? बोलिए बोलिए। अब खामोशी से सुनना, जैसे मैंने सुना है खामोशी से, ठीक है, बीच में टपकना मत, वरना फिर मैं समझूंगा कि आप खामोशी। देखो ये कितना बदतमीज इंसान है। देखो यार, कह रहा है कि मैंने बड़ी खामोशी से सुना है। अभी मैंने पूरी तुम्हारी मुकम्मल बात खामोशी के साथ सुना, बीच में टपक। अच्छा चलो एक मिनट, इसके तहत और तुम्हें कोई बात करनी है तो बोलो, मैं खामोशी से सुन। बोल अब बोल, क्या बोलना चाहते हो? अब खामोशी से सुनोगे ना, तुमको ये इजाजत दिया, तुमने ये मुझे इख्तियार दे दिया कि तुम अब बोलो, तो अब सुनना खामोशी से। हाँ बोल। मौलाना थानवी जो है कह रहे हैं, ये तावील कर रहे हैं ना इसकी, तुम कह रहे हो तावील कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर उनसे जब सवाल हो रहा है, बात को सुनना, जब उनसे सवाल हो रहा है कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं होगी, ठीक है जी, तो थानवी साहब कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, ठीक है जी। वो तो हमें काफिर कहते हैं लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद आगे उसी को बता रहे हैं कि अगर कोई काफिर है और हमने उसको अगर काफिर कहा तो क्या हरज, ठीक है, और अगर
काफिर नहीं है और हमने उसको काफिर कह दिया तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वही बात, देखो ये तुम्हारे थानवी जी हुक्म लगा चुके हैं कि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को, कि जब थानवी इसका ये एतकाद रखते हैं कि जब कोई काफिर नहीं है और अगर उसको काफिर कह दिया जाएगा तो ये बड़ा खतरनाक मामला होता है, ठीक है। बरेली वाले मौलाना थानवी के ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाए हैं, ठीक है। वो कुफ्र सादिक मौलाना थानवी के ऊपर कुफ्र सादिक नहीं आता है आपके बकौल, ठीक है। आपके बकौल उनके ऊपर वो कुफ्र सादिक नहीं आता, ठीक है। तो अब ये बात मौलवी थानवी कह रहे कि वो खतरनाक मामला होता है, ठीक है। तो अब वो खतरनाक मामला ये बरेली वालों की तरफ होगा ना भाई, वो रुजू मतलब खतरनाक से मुराद ये कि वो कुफ्र लौटेगा। तो अब वो कुफ्र बरेली वालों की तरफ लौटा है ना, उसके बाद जिसको वो कह रहे हैं कि नहीं उसके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं, मुसलमान हम वो उसको जो उसके नमाज पढ़ने के लिए दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो साबित हो गई ना कि जब हदीस शरीफ की रोशनी में मौलाना थानवी जब इसका इकरार कर रही, या तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने अपने कुफ्र का इकरार किया, ठीक है। अगर नहीं इकरार किया, मेरी बात को सुनो, अगर इकरार नहीं किया तो जो साइल है, जो सवाल करने वाला है, उसको मौलाना थानवी कहते कि नहीं मौलाना अहमद रजा ने जो है या बरेली वालों ने, जो हमें काफिर कहते हैं, बरेली वालों ने हमारे ऊपर जो कुफ्र का हुक्म लगाया है वो गलत लगाया है, वो मेरे ऊपर साबित नहीं आ रहा है, लिहाजा इस रोशनी में वो कुफ्र जो है बरेली वालों की तरफ पलटेगा, ठीक है। तुम्हारी नमाज वहां नहीं हो सकती है, इसका वो उसे ये करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये बात वाजे हो गई कि मैं काफिर नहीं हूं और कुफ्र उधर लौटा, उसके बाद भी अगर उसको मुसलमान कहते हैं तो इस रोशनी में भी मौलाना थानवी काफिर होते हैं, ये मेरा कहने का। अब आप खामोश रहे। हाँ, और अब इसमें तावील, अरे एक मिनट पहले बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। आपने कहा कि बिदाती के कुफ्र का हुक्म नहीं है, चलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इस इबारत में चूंकि वो बिदाती के पीछे वो तो हेडिंग है कि बिदातियों के पीछे नमाज, ठीक है। तो बिदातियों के पीछे नमाज, अगर आप जैसे बिदातियों के पीछे जाकर के नमाज पढ़ते हैं या बिदातियों को मुसलमान मानते हैं, जब ये सवाल होता कि बिदाती मुसलमान है या नहीं है, या बिदतियों के पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि बरेली वालों के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, ये है कि वो तो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर कहते हैं। यहाँ बिदाती हेडिंग है, लेकिन भारत में कहीं बिदाती कोई लफ्ज बिदाती बोल करके कोई लफ्ज नहीं है। आप थानवी साहब की बेजा तावील कर रहे हैं, चलिए बोलिए। सुनिए, हाँ, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक तुम्हारे मौलवी हसन अली रिजवी कहते हैं कि मौलाना थानवी जो है बरेली वालों को बिदाती और जो है क्या बोलते हैं बिदाती कहकर जो है गालियां दिया करते थे, ठीक है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों को बिदाती ही तसव्वुर करते थे, अच्छा, ठीक है। और ये मैं एक नहीं किताब से बल्कि कई किताबों से साबित कर सकता हूँ, जो हमारे आलिमों ने इकरार किया है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों को बिदात थे, अच्छा। इसीलिए हेडिंग वहाँ पर है कि बिदाती के पीछे नमाज, ठीक है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद है कि बरेली वाले जो है बिदाती हैं, ठीक है, और बिदातियों के ऊपर किसी ने भी जो है कुफ्र का फतवा नहीं दिया है, अच्छा। यानी कि अगर दिया है तो ये मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जिसने ये फतवा दिया वो मुझे दिखाओ। चलिए बात मुकम्मल हो गई आपकी। अब सुनिए हाँ, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है, अच्छा, ठीक है, और तावील जो करे तो उसके वो काफी नहीं होता है। ये आप ये शरा मुस्लिम लिन्नवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये, इसको चलिए हो गई, बात मुकम्मल हो गई आपकी। सुनिए, अरे अभी बाबू सुने, ठीक है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, मुकम्मल करो मेरे सोना, बात मुकम्मल करो। सुनिए, हेलो, चलो बोलो सुन रहा हूँ, बोलो। जी एक मिनट रुके, मैं शरा मुस्लिम उठाता हूँ, ठीक है। उठाओ इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। गाना कितना है बादी रजा की को ये हिमालय रजा का है। हेलो, हाँ जी बोलिए।
जी हाँ। तुफैल रजा खानी साहब सुनिए देखो फिर वही बात, मैं फिर अशर्रे फैली, सुनिए मैंने कहा ना जबान का इस्तेमाल सही करो, सलीके से बात अरे नहीं हो तो सुनिए यार, जुबान की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे मसलक की जुबान कितनी गंदी है। मैंने कहा ना तो जबान का इस्तेमाल सही करो, फिर मैं वही उसी दिन की तरह गाली देने लगूंगा। सुनो हाँ सही से बात करो, चलो बोलो। हेलो, सुन रहे हैं आप? अरे सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए, बोल क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा बोला यार, मैं तो कह रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ सुन, हाँ बोलो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हाँ। इस हदीस की शरह में लिखते हैं हाँ। कि अहले हक का मजहब ये है कि मुसलमान कत्ल और जिना जैसे गुनाहों की वजह से काफिर नहीं होता, इसी तरह अपने मुसलमान भाई को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा ना रखता हो। ठीक है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं इस इबारत में जो आपने पेश की है, ठीक है, इसमें तो तावील कर रहे हैं, और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है कुफ्र का फतवा नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। और तावील उन्होंने की है, तो तावील की बिना पर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह काफिर कैसे हो जाएंगे? बात मुकम्मल हुई तो मैं बोलूं? जी जी। अब जिस तरह से मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी, उसी तरीके से आप भी खामोशी से बात सुनेंगे, ठीक है? जी। सुनिए, वो जो आपने शरह पेश किया है, समझ रहे हैं जी, उसके बारे में जरा सा 1 मिनट के लिए मैं वो भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने क्या फरमाया है, इमाम नबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया है? जी उन्होंने फरमाया है, हाँ वो इस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं, ठीक है? किस हदीस शरीफ, किस हदीस मजहब ये है कि मुसलमान किस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं? को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा ना रखता हो। 1 मिनट, आरिफ साहब किस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं? ये शरह मुस्लिम शरीफ की। तो किस हदीस के उसमें लिखते हैं? शरह मुस्लिम लिन्नवी तो नाम है। वो किस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार। इसी हदीस जो आपने पेश की है ना, हाँ उसी हदीस की इबारत पढ़िए ना, उसकी इबारत पढ़िए ना। इबारत उसमें नहीं है क्या? उसमें इबारत नहीं है क्या हदीस शरीफ की? अरे भैया, हदीस तो उसी हदीस के मुतालिक बात हो रही है ना। मुतालिक बात होगी तो इबारत पहले उसमें नकल किया होगा ना, फिर उसके बाद ना उसकी वो तशरीह कर रहे होंगे। इबारत पढ़िए ना, क्या है उसकी इबारत। हाँ तो वही हदीस है, तो फिर वही हदीस है, उसकी इबारत पढ़िए ना पहले। अरे क्या ये इद क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि फ़क़द बाअ बिही काफ़िर, फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा, ठीक है। इसी के ज़िम्न में वो इसकी तशरीह कर रहे हैं, इसकी शरह लिख रहे हैं जी। हाँ ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। आप मुकम्मल हो गई बात। उन्होंने ये कहा कि अगर इस हदीस में यह है, इसकी तशरीह में जो है लिख रहे हैं कि कोई काफिर, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहे तो काफिर नहीं होगा, ये लिख रहे हैं। अरे भैया 2 मरतबा आपको पढ़ के सुनाई मैं उस वक्त नहीं सुना, उस वक्त मैंने अभी मैं जो आपसे मुतालबा कर रहा था कि किस हदीस की तशरीह में लिख रहे थे, उस वक्त मैं वो सवाल कर रहा था। 2-3 बार मैंने आपको आवाज दिया, आप उसको पढ़ने में लगे थे तो मैं वो सुन नहीं पाया हूँ। चलिए फिर पढ़ दीजिए यार, जब मैं आपसे कह चुका था कि आप खामोश रहे, मैं नहीं तो मैं उसका देखो, मैं मुतालबा करने का हक है ना मैं, कि वो किस हदीस शरीफ के मुतालिक वो बात कर रहे। आपने कहा कि इसी हदीस से मैं क्या समझूंगा। मैं वो समझ रहा था कि किस हदीस शरीफ, मैं उसको समझना चाहता था कि किस हदीस शरीफ के मुतालिक ये तशरीह बयान कर रहे हैं इमाम। अरे तो मैंने साफ वाज़ेह यार, हाँ तो अब चलो ना, मैंने तो यही कहा। अरे भाई अब पढ़ दो ना, की शरह में लिख रहे हैं। अरे अब पढ़ो ना, पढ़ो। क्या यार ढोंगी इंसान है ये। फिर वही ढोंगी इंसान कह रहे हो, फिर मुकम्मल सुनो, उसके बाद में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की, यानी जो हदीस मैंने अभी पढ़ के सुनाई, उसकी शरह में लिखते हैं कि अहले हक का मजहब ये है कि मुसलमान कत्ल और जिना जैसे गुनाह की वजह से काफिर नहीं होता, इसी तरह अपने मुसलमान भाई को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा ना रखता हो। अब यहाँ पे खामोशी से अब अपनी पूरी बात आपने कही है, मैं बोलूंगा तो मुकम्मल आप सुनिएगा, ठीक है जी? सुनाएं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि ये मौलवी थानवी साहब ने जो है
ये बिदातियों के मुतल्लिक ये बात कही है, ठीक है। जी जी बिल्कुल वाज़ेह है उसमें। उसमें पहले जाहिर सी बात है, ऊपर जो हेडिंग है कि बिदातियों के पीछे नमाज के मुतल्लिक वो बात कह रहे, ठीक है। जी जी देखिए, मैं वही आपसे सवाल किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, फिर करता हूँ पलट करके। अभी आप खामोशी से सुनिएगा, अब जब आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा। जी मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर बिदाती जो है, जो हुक्म कुफ्र बिदाती लगाते हैं, ठीक है, किसी मुसलमान पे अगर कोई बिदाती हुक्म कुफ्र लगाए, जो कलिमात पेश करके उसके उन्वान के तहत किसी को कोई काफिर कहे, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर कोई बिदाती किसी मुसलमान को किसी उन्वान के तहत काफिर कहे, ठीक है, तो क्या बिदाती पे वो हुक्म कुफ्र, वो कलिमात लौटेंगे या नहीं, अगर उसके ऊपर साबित नहीं आएगा तो, ठीक है। आपने इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैं अभी आपने इसका जवाब नहीं दिया, इसका जवाब जब आपकी बारी आएगी तो दीजिएगा, ठीक है। ये एक हाँ। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो पलटेंगे, आप अगर कहेंगे कि वो पलटेंगे, वो कलिमात पलटेंगे उसके तरफ, क्योंकि आप अच्छा इस हदीस शरीफ में भी ये बात वाज़ेह है कि सिर्फ काफिर कह देने से आदमी काफिर नहीं होता। अगर कोई मुसलमान को कहते काफिर तो काफिर नहीं, जो जिस उन्वान के तहत, जो हुक्म कुफ्र मतलब जिसके तहत आदमी काफिर कहता है, ठीक है, अगर वो बात वो जो जिसके तहत कह रहा है, अगर वो सादिक नहीं आता है, मेरी बात को सुनना, उसकी पूरी वजाहत आपको समझ में आएगी कि अगर जिस कलिमात के तहत, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको वो बात कह रहा हूं कि आला हजरत ने काफिर कहा हिफ्जुल ईमान की इबारत के तहत, ठीक है, कि हिफ्जुल ईमान में जो गुस्ताखियां की हैं थानवी साहब ने, ठीक है, तो उसके तहत आला हजरत ने थानवी साहब को काफिर कहा, ठीक है। अब अगर वो सादिक नहीं आएगा उनके ऊपर, समझ रहे हैं, तो वही कलिमात इनकी तरफ लौटेंगे, आला हजरत की तरफ, और जिसके तहत वो काफिर होंगे, समझ रहे हैं। ये जाब्ता हदीस शरीफ का मैंने पेश किया। ऐसा है कि अब मैं आपको काफिर कह दूं, मैं कह दूं जैद काफिर है, जैद काफिर है, जैद काफिर है, तो ऐसे काफिर कह देने से कुफ्र नहीं पलटेगा। तहत हम उसको काफिर कहेंगे, बात को समझो, जिसके तहत हम काफिर कहेंगे वो कलिमात उसके पलटते हैं और उसके बाद इंसान जो है काफिर होता है। मैंने वो बात आपको बता दी पूरी वजाहत के साथ। आपने कहा कि नहीं, बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल होने दीजिए। जब आपने बात कही तो मैंने बिल्कुल आसानी से और खामोशी से ये बात मैंने सुनी, ठीक है। नहीं तो जल्द अपनी बात, आप तो 1 घंटे में पूरी करते हैं, तो आप मुझे बोलने देना। मैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने बल्कि आपको आगाह की, इस रिकॉर्डिंग में मैंने आपको आगाह भी किया था कि आपकी बात तो कयामत तक नहीं खत्म होगी। तो मैंने क्यों कहा था, पहले बात को सुनो गौर से। हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को बहुत बड़ा मानता हूँ। सुनो मेरी बात को। नहीं, तुम्हारा तो ये अकीदा है। पहले बात को सुनो, मैंने कहा ना उसका जगह हाजिर नाजिर समझना ये बेदीनी है। बात को सुनो, जब मैंने उसका मुतालबा किया है तुम उसको भेजना। मैंने उसका मुतालबा किया है, मैंने कहा ना कि 2-2, 3-3 सफ़े आगे पीछे से उसको भेजना, फिर मैं तुमसे नहीं अल्लाह, ये तो जो तुम्हारे एतराज़ात, ये फोन पे सुनो, हम ये फोन पे हम तुमसे अभी मेरी बात को सुनो, मैंने कहा ना ये फोन पे तुम अगर कोई भी हवाला दोगे, मेरी बात सुनो, अगर मेरी किताब बात दूसरी तरफ जा रही, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फोन पे तुम हमारे किताब के खिलाफ कोई भी बात कहोगे तो मैं पहले उसका मुतालबा करूंगा व्हाट्सएप पे, पहले मैं उसको देखूंगा कि तुम क्या। हाँ, मैं तुम्हारी किसी बात को, मैं या किसी देवबंदी की बात को, जब अरे आप बताएं क्या कहना है। अब मेरी बात मुकम्मल होने दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मानूंगा ना, तुम ऐसे क्या करके मेरे पास किताब, 1 मिनट, मेरे पास किताब नहीं है, तुम जो पढ़ करके सुना दो, कहाँ से सुनाओगे, क्या सुनाओगे, हम उसको थोड़ी ना तस्लीम कर लेंगे। सुनो मेरी बात। अब उसमें चूंकि ये बात मैं ये मेरा बार बार सवाल है कि ये बताओ कि जो मौलाना थानवी ने जिसको मुसलमान, जिससे जो सवाल करने वाला था, वो सवाल ये करने आया था कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, ठीक है। तो जो सवाल करने वाला आया था वो तो बरेली वालों के मुताल्लिक सवाल किया था, ठीक है। अब मौलाना थानवी जो है बिदाती ही समझते हैं बरेली वालों को, कह रहे हैं ना आपने कि कई किताबों में बरेली वालों को उन्होंने बिदाती कहा है, ठीक है। तो जवाब क्या उन्होंने दिया बिदाती के मुताल्लिक, फिर आपको इसकी वजाहत करनी होगी कि उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हो जाएगी। क्या इसकी भी आप वजाहत करेंगे कि क्या आपकी नमाज बिदातियों के यहाँ होती है या नहीं होती है? पहले इसकी भी वजाहत आप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 के बिदातियों को जो है फिर क्या कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। हाँ हो जाएगी, वो तो हमें काफिर कहते हैं, यानी बिदाती उनको, चूंकि वो बरेली वालों को बिदाती कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, बिदाती तो उनको काफिर कहते हैं, आपकी जबान बोल रहा हूँ, बिदाती तो उन्हें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, यानी बिदाती उनको काफिर भी कह देते हैं, तो ये बिदाती को फिर काफिर नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं ये पूरी वजाहत। तो अब इसका जवाब आप मुझे बोले बिल्कुल संजीदगी के साथ कि जब बिदाती अगर काफिर कहे, ठीक है, और अगर उसके ऊपर कुफ्र सादिक न हो, मतलब जिसको काफिर कहे बिदाती, किसी मुसलमान को
काफिर कह दे अगर कोई बिदाती, और उस मुसलमान पे कुफ्र सादिक ना आए, तो क्या वो हुक्म कुफ्र बिदाती की तरफ पलटेगा या नहीं पलटेगा, इसकी वजाहत भी आप करेंगे। चलिए अब अपनी बात मुकम्मल करिए जी। ठीक है। हाँ। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत में कहीं पर भी नहीं कहा है कि बिदाती मुसलमान हैं। ठीक, आपने बताया कि बिदाती पे कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, आपने ये बताया। सुनिए बिदाती काफिर नहीं होते, ये बात कहीं पर भी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदातियों को मुसलमान नहीं लिखा है। ठीक है, जब मुसलमान ही नहीं लिखा तो कुफ्र लौटने का क्या सवाल पैदा होता है। अच्छा, एक बात, चलिए मैं आपकी ये बात नोट कर रहा हूँ। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान कहा है जिसकी वजह से वो कुफ्र लौट आया, ठीक है, तो आप मुझे दिखाइए, इसका तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर आगे मैं चलता हूँ। क्या मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भारत में बिदअतियों को मुसलमान कहा है? चलिए बोलिए ना, जवाब दीजिए। चलिए इसी पे सुनिए, इसी पे मैंने आपसे ये सवाल किया। जल्दी जवाब दीजिए। देखो या फिर वही देखो बात को, जब या तो पूरी बात सुनो, मेरी बारी है ना, ये तो मैंने बीच में आप पर कर्म कर दिया, आप पर कर्म मत करिए ना, आप अपनी बात मुकम्मल करिए, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए। मैं पहले मेरी बात रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ कहाँ इस इबारत में कहा कि बिदअती मुसलमान है, बरेली वाले मुसलमान है, ये मुझे तो नमाज हो जाएगी, इसका हुक्म कैसे लगा रहे हैं? बिदअती जब मुसलमान नहीं तो बिदअती के पीछे नमाज होने का हुक्म कैसे? जी, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। उसी का जवाब दीजिए, फिर मैंने अपना जवाब दे दिया कि वो मुसलमान समझ रहे हैं। बिदअतियों के मुताबिक पहले बात को सुन लीजिए। जब मैंने आपने कर्म किया तो 1 मिनट में सुन लीजिए। आपने कहा कि मौलाना थानवी ने हर जा बरेली वालों को बिदअती कहा है, ठीक है। आपने कहा कई जगहों पे इसका सबूत है कि मौलाना थानवी ने बरेली वालों को बिदअती कहा है, ठीक है। फिर आपने पलट करके मुझसे ये सवाल किया कि इस इबारत में मौलाना थानवी ने कहा बिदअतियों को मुसलमान लिखा है, ठीक है। इसमें मुसलमान नहीं लिखा, लेकिन जब नमाज होने का हुक्म दे रहे हैं, बरेली वालों को बिदअती भी कह रहे हैं और उनके पीछे नमाज होने का हुक्म दे रहे हैं, तो यानी कि आपके यहाँ बिदअतियों के पीछे नमाज होती होगी, जब तो ये हुक्म दे रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। हाँ आगे बोलिए चलिए। जी हाँ, आप मान कि इस इबारत में बिदअतियों को, बरेली वालों को मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, अरे नमाज होने का हुक्म किसके लिए देता है? सुनिए आप क्या होती है या बिदअती? सुनिए ना, नमाज होने की नमाज जाती है। हाँ चलो बोलो। खामोश रहे। मकालात सईदी, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की किताब है। तुम्हारे अकाबिर बहुत बड़े अकाबिर हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इसी किताब में मकालात सईदी में, कि देवबंद वाले जो हैं वो बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज समझते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे घर से मैंने साबित किया। अब ये रही बात हो रही है। चलो बहरहाल वो इबारत सुनो, वो इबारत मेरे पास, मैंने कहा ना कि हमारे घर के कोई भी किताब मुकम्मल होने दे। और वो बहरहाल ये बेमौजू बात कर रहे हो, इस पे जो इधर जा रहे हो ना, ये बेमौजू बात हो रही है। इस दलील के ताल्लुक में अब हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने घर की जो बात कर रहे हैं। चलो तुम अपनी बात करो, हमारे घर की कोई किताब की बात करोगे तो पहले उसको तुम्हें भेजना होगा मेरे व्हाट्सएप पे। ये तो मैंने तुम्हारे घर से साबित कर दिया कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ये कह रहे हैं। अरे साबित कैसे? जब तक हम उसको साबित मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जो ये बात को सुनो, साबित के पीछे नमाज हो जाएगी, होगी बात, वो बात साबित तब होगी जब हम उसको अपनी आंख से देख करके तस्लीम कर लेंगे। जब हम तुम्हारी उस बात को मानेंगे तब ना, कि जब उसको तुम भेजोगे। नंबर 1, तुमको मुनाजिर किसने बना दिया? ना तुम्हें किताबों का इल्म है, ना किसी चीज का इल्म है। मैंने क्या कहा कि जब तुम उसको दलील के तौर पे पेश करोगे, और जब तक दलील मुद्दई है, जब तस्लीम नहीं करेगा तो तुम उसको कैसे कह दोगे कि हमने साबित कर दिया? साबित करने के लिए पहले तुम उसको दलील दोगे। और दूसरी बात यह है कि जो तुम दलील दे रहे हो वो दलील मौजू से हट करके दे रहे हो। चलो आगे की बात। एक मिनट मौलाना तुफैल रजा साहब सुनिए। जो बात मैंने कही कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ये कहते हैं कि देवबंद वाले बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज समझते हैं, अगर ये बात मैं न पेश, अगर ये जो इन्होंने ये कहा है, ठीक है, तो क्या ये बात गलत है? मैंने क्या कहा? वो मेरे मुताले में नहीं है। नहीं, अगर मैंने वो मेरे मुताले में नहीं है। मेरे मुताले में नहीं है। मैं देवबंदी की एतमाद नहीं कर सकता। अब सुनिए, ये मेरा, अगर जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा अगर आपके सामने वाज़ेह हो जाए,
ठीक पहली बात तो मैंने इसका ये भी इनकार किया कि ये दलील जो है इस मौजूद के ताल्लुक से नहीं है, मैंने इसका भी इनकार अरे किया। भैया बहुत बोलते हैं, मेरी बारी आई तो आप खामोश होने का नाम ही नहीं ले। आप जो गलत बात कहेंगे तो हम उसको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे ना। पहले इसको साबित पहले करो तो ना। दो बात मैं कह रहा हूँ कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने जो ये बात की है कि देवबंद वाले बरेलियों के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज समझते हैं, अगर ये बात गलत निकली तो जो चोर की सजा वो मुझे देना। अच्छा तो बताइए। चलो तो ये तो अगर एक मिनट, अगर मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब ये बात फरमा रहे हैं, मेरी बात को सुनो। मैं इसी दलील में दो बात तुमसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने जो तुमसे दलील की बात कही है वो दलील मैंने कहा कि तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमने ये बात कही है कि ये दलील जो है ये इस मौजू से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो? अगर तुम ये बिल्कुल मौजू से ताल्लुक है। चलो तो अब एक मिनट, जब मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब कह रहे हैं कि देवबंद वाले जो है बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज कहते हैं, नाजायज समझते हैं, ठीक है, तो मौलवी थानवी साहब बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ने के लिए कैसे जायज होने का हुक्म दे रहे हैं? अब इसकी वजाहत अपनी किताबों से अपनी बात। जी ये इस फतवा से मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने रुजू किया है। किस फतवे से? ठीक है, हाँ, इसी फतवे से कि बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, रुजू क्या है? हाँ, अब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जिस किताब के ऊपर तकरीज है उसमें बरेलियों को शैतान कहा गया है। किसमें? क्या? अल मुहन्नद अल मुफन्नद में, ठीक है, क्या कहा गया है? बरेलियों को शैतान कहा गया। सुनिए, आप खामोश रहें, मेरी बारी है तो आप बोलो। ठीक है, हाँ, अभी अल मुहन्नद अल मुफन्नद की मैं बात करूंगा, बोलो। जी तो आप ये बताइए, क्या शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? बरेली वालों को आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद। एक मिनट पहले बात सुनो। हम एक मिनट, तुम जो सवाल कर दोगे उसी का भड़ाक से आदमी थोड़ी ना जवाब देगा, उसके आगे पीछे बोलेगा ना। तो मैं जवाब देता हूँ। नहीं जवाब देते, कहाँ तुम जवाब देते? मैंने तो भड़ाक से तुम्हें जवाब दिया यार। कहाँ जवाब दिया है तुमने? पहली बात तो ये कि तुमने ये बात कही है कि मौलवी थानवी ने अपने इस कौल से रुजू किया है कि उन्होंने बिदअत के पीछे नमाज पढ़ने को जो दुरुस्त कहा है उससे रुजू किया है। उसका रुजूनामा जो है जरा किस किताब में उन्होंने रुजू किया है उसको जो है दलील के तौर पे पेश करोगे हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है? जी। जो हमारे लिए तुम दलील मेरी मुझे बात मुकम्मल होने यार। अरे यार, बात मुकम्मल होने दो। तुमने कहा कि आपके पर्सनल में जो है मैं दलील पेश करूँ। अरे हाँ, तो व्हाट्सएप पे मैं सुनो। अरे बात तो सुनो ना मुकम्मल यार, तुम बोल। अरे यार, नहीं, तो मैंने इसीलिए कहा कि जब मेरी बारी में ये बोलता रहता है यार। मैं तुमने तो सवाल करके अपने मतलब सवाल जैसे किया तो अपना वक्त खत्म मान लिया ना। अरे अल्लाह अकबर, का जब मैंने आपको इजाजत ही नहीं दी। तो चलो तो अब आगे की बात पूरी करो। अब छोड़ो आगे की बात। हाँ, खामोश रहना, ठीक है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में हमारे अकाबिरीन देवबंद ने, ठीक है, उसमें मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, दीगर अकाबिरीन देवबंद हैं। बरेलियों को शैतान कहा गया है। अब बरेलियों से मेरा ये सवाल है कि बरेलवी अगर शैतान को मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं, ठीक है, अगर शैतान को मुसलमान समझते हैं तो बरेलवी मुसलमान है, अगर शैतान को काफिर समझते हैं तो जो है बरेलवी काफिर हैं, ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये फतवा दिया कि बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी, ठीक है, तो इससे रुजू ये है कि मौलाना, किताब का नाम बताओ भैया, किस किताब में रुजू किया है? जी बता रहा हूँ। किताब का नाम बताओ। ये जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी आपके हैं, इनके मरने के, इनके कब्र में सड़ने के, देखो फिर हरामखोरी वाली बात कर। गुस्ताखे रसूल, मैं कह रहा तेरा मौलवी गुस्ताखे रसूल, तेरे पास जवाब नहीं है तो सीधी सीधी बात बोल रहा जवाब दे रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। जो है सड़क के लाइटिंग है। एक मिनट, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, हमारे के मरने के 8 साल बाद, मौलवी अहमद रजा बरेलवी के मरने के 8 साल बाद जो है एक किताब लिखी गई सैफ यमानी, ठीक है, इस किताब के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि अहमद रजा बरेलवी अपनी इबारात और अपने फतावा। ये सैफ यमानी किसकी किताब है?
सुनिए सुनिए, एक मैं मिनट। जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश रहे। मुसन्निफ कौन है? तो खामोश मैं रहे। मुसन्निफ का मुतालबा कर रहा हूँ, बोलो ना यार। अरे बीच में टपक पड़ता है, अरे तो पहले ये मालूम मुसन्निफ का करना था। बताने, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह मौलाना मंजूर नमानी की बात हमारे लिए हुज्जत तो नहीं हो सकती है, अभी थानवी की बात हो रही है। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात उसके हुज्जत है तेरे लिए? मौलाना थानवी, एक मिनट, मौलवी थानवी के बाद अगर कोई मौलाना अहमद रजा को काफिर कहेगा तो ये बात इसलिए हमारे ऊपर नहीं हुज्जत हो सकती है कि मौलवी थानवी ने जब मुसलमान माना है और उसके बाद का अगर कोई देवबंदी जो है, पहले बात सुनो, अगर उसके बाद का कोई देवबंदी मौलाना अहमद रजा को काफिर कहेगा तो वो मौलवी थानवी के कौल का बागी होगा, और हम उसकी बात को कहाँ माना, ये इसकी दलील दे जरा। क्या तो तुमने कहा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान माना है, तो ये दलील दे जरा। वो क्या मुसलमान नहीं माना है? उसमें क्या कह रहा है? उसमें क्या कहा है? बरेली वालों के पीछे हम नमाज पढ़े तो उन्होंने जवाब दिया ना कि हाँ नमाज हो जाएगी, और तो मुसलमान माना है। तो क्या नमाज किसके पीछे होती है? काफिर के पीछे होती है, मुसलमान के पीछे होती है? अच्छा, काफिर और मुसलमान यही दो लफ्ज हैं। एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, काफिर के पीछे नमाज तुम्हारी हो जाती है क्या? या अल्लाह अकबर, हमारी तो नहीं होती, तुम्हारी लेकिन हो जाती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम ये कह रहे हो कि मुसलमान नहीं माना। एक मिनट, मुसलमान नहीं माना, पहले बात को सुनो। अरे यार, तुम अपने ही बिदातियों को कहीं भी मुसलमान नहीं कहा गया, तुमने ये बात अभी कही है, ठीक है जी। तुमने ये बात अभी कही, इसी रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है बात, कि तुमने ये बात कही कि बिदातियों को कहीं भी काफिर नहीं कहा गया है, ठीक है। मौलवी खान, हाँ, कहीं भी काफिर नहीं कहा गया, नंबर एक। अब मेरी बात ये सुनो कि जब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने जो कुफ्र का हुक्म लगाया था, बात को अब सुनो, अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई, अब मुझे बोल रहे कहाँ मुकम्मल हुई? तुम्हारी कहा कि तुम्हारी बात कयामत तक मुकम्मल नहीं होगी। अरे बीच में यार बोलते रहो, बीच में बोलते रहे, इसलिए कि तुम बात करोगे यमानी की बात, ठीक है, यमानी के मुतालिक मैं क्या कहता हूँ, और मंजूर नौमानी जो है मौलवी थानवी के बाद का आलिम है, और मौलवी थानवी जब बरेली वालों को मुसलमान मान रहा है, इसलिए कि बरेली वालों को मुसलमान इस माने में मान रहा है कि जब उससे सवाल ये हो रहा है, पहले बात को सुनो, जब उससे ये सवाल हो रहा है कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, तो मौलवी थानवी कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी। तो अब इससे ये बात तो साबित हो गई ना कि जब हो जाएगी तो नमाज किसके पीछे होती है, यही तो मैं पूछता हूँ। मुसलमान के पीछे नमाज होती है या काफिर के पीछे नमाज होती है, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुन हाँ, और जिसमें एक मिनट पहली बात को सुनो, तुमने ये कहा कि जिसमें मौलवी थानवी ने रुजू किया है, ठीक है, वो उस किताब का नाम पहले मुझे बताओगे कि मौलवी थानवी ने किस किताब में रुजू किया है, उसका रुजूनामा होगा ना? जी। हाँ, उसका रुजूनामा होगा, उस किताब का नाम बताओगे, सफा नंबर बताओगे, उसका मुसन्निफ का नाम बताओ। हाँ सुन, चलो बोलो। सैफ यमानी, ठीक है, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसमें मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज मौजूद है। उसका माखज बताओ कि वो कहाँ से अखज किया है उन्होंने, वो उसका माखज बताओ कि वो मंजूर नौमानी ने कहाँ से ये किया, हाँ कहाँ से नकल किया? मौलवी अहमद रजा बरेलवी के मरने के 8 साल बाद किताब लिखी गई है। हाँ ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ये मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद के आलिम हैं। तो क्या इन्होंने मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना पाया था या नहीं पाया था? इसका जवाब चाहिए फौरन। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देखो मेरी बात को सुनो। नहीं, पहले मैं इसका जमाना पाया था या नहीं पाया था बात उसकी नहीं हो रही है। सुनिए, नहीं, जमाना पाया था या नहीं पाया था, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट, अब मेरी बात को सुनो। दारुल उलूम देवबंद है तुम्हारा, उसमें मुफ्ती है, ठीक है, और वो एक मिनट वो फतवा देते हैं और उन्हीं के जमाने में तुम भी हो, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनका जमाना पाया था कि नहीं पाया था? इससे क्या इससे लेना देना है? जो तुम्हारे एक मिनट हम देखेंगे ना, जो देखो दारुल उलूम देवबंद ने, अरे पहले तुमसे जो मुतालबा हो रहा है वो उसका जवाब नहीं दे रहे हो यार। इधर उसी का जवाब दे रहा हूँ, इंसान उसी का जवाब दे रहा हूँ। मौलवी थानवी ने रुजू किया है और सैफे यमानी के जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वही उसका माखज बताओ। मौलाना मंजूर नौमानी ने इसको कहाँ से नकल किया है, इसका माखज बताओ, फिर उसके बाद बात करो। खामोश रहना, ठीक है, अब खामोश रहना। हाँ बोलो। हाँ, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सैफ यमानी में लिखा है कि अहमद रजा बरेलवी अपनी इबारात, अपनी तहरीरात और यार मौलाना अहमद रजा के ऊपर हुक्म नहीं पूछ रहे हैं यार। सुनिए अभी उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। मौलाना अहमद रजा का बरेलवी पे हम हुक्म नहीं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो हम तुमको पकड़ते हैं, गिरफ्त करते हैं। बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमने ये कहा ना कि मौलाना मंजूर नौमानी ने मौलाना अहमद रजा के बारे में क्या हुक्म लगाया, नहीं सुनेगा, ये बात करने दे रहा ही नहीं है। थानवी ने जहाँ
رجوع کیا ہے اس رجوع کا مقصد بتاؤ کہ کس کتاب سے رجوع کیا ہے, کس کتاب میں رجوع کیا ہے, اور مولوی منظور نعمانی نے کس کتاب کو نقل کیا ہے, اس کا صفحہ نمبر حوالہ دے کر کے مجھے بتاؤ. تو خاموش رہے گا نا. تو پھر مولانا احمد رضا پہ حکم مولانا منظور کا کیوں بتا رہے ہو؟ ارے پوری بات تو سنے گا لے, ٹھیک ہے, آپ خاموش رہنا. ہاں, تو اس میں لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات, اپنی تحریرات اور اپنے بنائے ہوئے اصول اور فتاوی جات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بریلوی حضرات بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس پہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مان رہے ہیں کہ جو ہے بریلوی خارج الاسلام ہیں. کیا مان رہے ہیں, کہاں مان رہے ہیں, کہاں مان رہے ہیں؟ سیف یمانی میں. سیف یمانی میں مان رہے ہیں, تو پھر رجوع تم کہہ رہے ہو کہ رجوع کیا ہے, اس کا رجوع تو یہی تو رجوع ہے مولوی احمد رضا اس کے وفات کے. کس کتاب میں رجوع کیا, اس کا رجوع نامہ تم پیش کرو گے ابھی. یہی تو رجوع ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب تقریر موجود ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بریلیوں کو خارج الاسلام سمجھتے ہیں. ایک منٹ, مولوی منظور نعمانی نے حکم کفر لگایا مولانا احمد رضا خان بریلوی پہ. ٹھیک ہے, اب اس کی ایک منٹ بات کو سن لو. اب اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو تصدیق کرے, میں کہہ رہا ہوں تصدیق کرے, تو یہ کیا رجوع ہے؟ سنیے, رجوع ہے. رجوع تو مولانا احمد رضا بریلوی کی آپ نے بات نہ کر کے, لیکن بریلیوں کی بات کیوں ہضم کر گئے؟ جس طرح مولوی احمد رضا بریلوی کافر ہے, اور اسی طریقے سے جو احمد رضا بریلوی کے عقائد و نظریات کو جانتے ہوئے جو اس کے عقیدے میں ملوث ہیں, جو ان کے عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں, وہ بریلوی بھی اسی طرح کافر ہیں. بات مکمل ہو گئی آپ کی, میں بولوں؟ جی ہاں, اب سنیے. مولانا عارف حقانی صاحب, آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ اپنی بات پہ رہیے گا. جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. آپ نے کیا کہا کہ مولانا تھانوی کا رجوع نامہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی, اس کے لیے انہوں نے رجوع کیا ہے. سنو میری بات کو, آپ سنو گے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس میں ان کی تقریر موجود ہے کہ کیا ہے. میں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ اس کا مجھے جواب دیجئے کہ انہوں نے کہاں رجوع کیا ہے. میری بات کو سنیں گے آپ. انہوں نے کس کتاب میں رجوع نامہ اپنا لکھا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے, بات کو سمجھیے گا میری, میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں جو ہے وہ بات میں نے غلط کہی یا جو بھی کہا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں, اس قول سے رجوع کرتا ہوں. آپ تو پہلے اس کی یہ کوئی ایسی کوئی بھی تحریر ہو, میری بات کو سنیے گا, تو آپ اس کا جو میں نے مطالبہ کیا کہ کون سی کتاب میں مولانا تھانوی نے رجوع نامہ اپنا لکھا ہے. اب سنیے, آپ نے پھر سیف یمانی کی بات کی, مولوی منظور نعمانی کی جو تصنیف کردہ کتاب ہے نا, غالباً ایسی ہے نا, تصنیف کردہ مولوی منظور نعمانی کی وہ کتاب ہے نا. جی, تو منظور نعمانی سنبھل پوری نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے مولانا احمد رضا پہ اور بریلی والوں پہ حکم کفر عائد کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو بھی بات کہی ان کے اوپر جو ہے حکم تکفیر عائد کی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے اس میں نے کہا کہ آپ سے میں نے پھر مطالبہ کیا کہ مولانا تھانوی صاحب نے جو رجوع نامہ پیش کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جس کتاب میں رجوع نامہ پیش کیا ہو تو مولانا منظور نعمانی نے اس کتاب کی نقل کر کے اپنی کتاب میں اس کو شائع کیا ہو, لکھا ہو, ہے نا. میں نے وہ بھی پوچھا کہ وہ اس کا ماخذ بتا دیجیے سیف یمانی میں جو وہ بات موجود ہے جس میں ایسے ہی سننا میری بات. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں. تو اس میں آپ کو رجوع نامہ دکھا دیجیے. اب ایک بات یہ ہے کہ پہلے بات کو سنو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے بریلی والوں کو مسلمان مانا تھا, بات کو سمجھنا میری بات کو, آپ مسلمان نہیں, ہاں بریلی والوں کو تو مسلمان وہ ماننا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھو بحث کر رہے ہو, اس لیے مسلمان میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھے تو ہوگی یا نہیں, یہ سوال تھا, تو انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گی. تو نماز ہر حال میں, چونکہ امام کے لیے یہ مومن ہونا شرط ہے, مسلمان ہونا شرط ہے, تو اب انہوں نے کہا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. جب انہوں نے اپنا یہ تسلیم کر لیا کہ امام مسلمان, چونکہ یہ آپ بھی جانتے ہو کہ امام مسلمان ہی ہوتا ہے, کافر امام نہیں ہوتا ہے, اب بدعتی امام نہیں, تو انہوں نے اپنا جو بھی ان کا موقف رہا انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جائے گی. بدعتی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. تو ایک منٹ, آپ نے کہا نا کہ بدعتی مسلمان ہوتا ہے, آپ نے یہ بات کہی نا. نہیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بدعتی کا آپ نے یہ بات کہی ہے, ابھی کہی ہے بات کہ بدعتی پہ کفر کا حکم نہیں لگایا گیا ہے کہیں پہ, یہ آپ نے بھی بات کہی ہے. ٹھیک ہے,
तो मैं फिर भी ये मेरा सवाल कर्ज था कि बिदअतियों के पीछे आपकी नमाज होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब सुनिए अरे यार और बाकी मुझे बोलने दो, फिर मैं कह रहा हूँ जब मेरी बारी आए तो मुझे बोलने दो, जब तुम्हारा वक्त होगा तो तुम बोलना। मैंने ये सवाल किया था कि बिदअतियों के पीछे आपकी नमाज होती है या नहीं, तो आपने इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। 1 मिनट, ये तो मैंने सवाल आपसे पूछा था। सुनो मेरी बात। फिर आपने कहा कि मुसलमान कहीं नहीं माना है, ये बात आपने अभी ये बात कही है। तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सवाल हुआ था मौलवी थानवी से कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगी। तो इससे साबित ये हुआ कि बरेली वाले मुसलमान हैं, इसलिए कि नमाज मुसलमान ही के पीछे होती है। नहीं इससे कहाँ साबित होता है? तो बिदअती के पीछे नमाज होती है क्या? इसका जवाब आप देखिए। हाँ 1 मिनट मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। इसका सवाल आपने पहली बात तो यह कि न तो काफिर के पीछे नमाज होती है न तो बिदअती के पीछे नमाज होती है। हाँ हो जाएगी, जब ये कह रहे कि हाँ हो जाएगी तो ये बात साबित है कि अब वो हमें मुसलमान तस्लीम कर लिए। नंबर 1। नंबर 2, अब सुनो मेरी बात को। नंबर 2 कि उन्होंने, हाँ 1 मिनट सुनो हेलो वहाँ बात तो है मत करो, अभी इसका जवाब तुम दो। और सुनो नंबर 2 इसमें कि उन्होंने कहा क्या कि वो तो हमें काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं, यानी बरेली वाले जो है वो हमें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, ठीक है। इसका तो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। पहले आप इतनी बातों का जवाब देंगे, पहले मेरी बात सुनो। अभी तो आप सुनो अभी इतनी बातों का जवाब देंगे कि उन्होंने जब नमाज पढ़ने के लिए कहा कि हाँ हो जाएगी, तो बिदअती के पीछे नमाज होगी ही नहीं, काफिर के पीछे नमाज होगी ही नहीं, तो हाँ हो जाएगी ये किसके लिए हुक्म है? चलो आगे बोलो। बिदअती को आप क्या मानते हैं, इतना जवाब दीजिए पहले। आपने कहा कि बिदअती के ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं है। नहीं आप बताए। आप 1 मिनट, बिदअती के ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं। अभी ये बात आपने कही नहीं, इधर उधर की बात मत करो। नहीं मैंने तो मैंने तो सवाल पे सवाल लगाया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पे सवाल होता है क्या? आप क्या, मैंने कहा ना कि उन्होंने मुसलमान नहीं माना है, तो आपने कहा, मैंने ये बात कही कि मुसलमान नहीं माना, तो क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जो हुक्म है वो उसका टाइटल भी है। तो मैंने फिर वही सवाल पलट करके किया। सुन लीजिए फिर, अब आधे मिनट में मेरी बात और सुनिए कि बिदअती के पीछे आपकी नमाज होती है क्या या काफिर के पीछे नमाज होती है क्या? अगर इन दोनों के पीछे नमाज नहीं होती, नमाज होती किसके पीछे? मौलवी थानवी साहब ने जो कहा है कि हाँ हो जाएगी नमाज, तो ये बताइए कि बरेली वालों के पीछे जो नमाज हो रही है, बात को सुनिएगा, तो वो जो हो रही है तो वो किसके लिए हुक्म है? वो मुसलमान के लिए हुक्म है या बिदअती के लिए हुक्म है या काफिर के लिए हुक्म है? अब इन तीनों में से किसी एक का जवाब आप सुनो। हाँ, और सवाल पे सवाल नहीं, जो तुमसे पूछा जाए उसी का जवाब। सवाल पे सवाल नहीं, मेरे पहले ये जो मेरे मुतालबात इनका जवाब दो। हाँ मुतालबात तुम्हारे सारे अभी रफा दफा करता हूँ, ठीक है। तुम क्या रफा दफा करोगे? जवाब दो। सुनो बोलो। तुम्हारे मसलक में बिदअती मुसलमान है या नहीं, इसका जवाब। फिर देखो यार, ये उधर उधर की बात कर रहा है। नहीं तुम क्या मानते हो, बिदअती को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? तुमने क्या कहा कि बिदअती के ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं है? अरे मैंने आपसे ये पूछा था कि बिदअती के ऊपर किसने हुक्म कुफ्र लगाया है। मैंने तो, तुमने ये कहा कि बिदअती के ऊपर कहीं भी हुक्म कुफ्र नहीं है, आपने ये बात कही, इसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो आप बताइए, आप क्या मौकफ है, आपके मसलक क्या मौकफ है? 1 मिनट, आप क्या मुसलमान मानते हो बिदअतियों को? अरे भैया फिर अरे मुझसे सवाल पे सवाल होता है, कहीं चाहिए तुमसे ये सवाल हो पूछ रहा हूँ कि आपके मसलक क्या ये मौकफ है कि बिदअती मुसलमान होता है या काफिर होता है? जहाँ मौलवी थानवी ने नमाज होने का हुक्म क्या है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जहाँ नमाज होती है, मुसलमान भी नहीं कहा है। जवाब नहीं है, तुम इधर उधर की बात कर रहे हो। सुनो, नमाज पढ़ने की इजाजत जो दी है, तो उसके बाद जो आपका फतवा है उसमें इस बात की सराहत है कि बरेलवी जो है खारिज, उसके बाद का फतवा तो इससे रुजू कहाँ किया है? इससे रुजू कहाँ? एक जगह मुसलमान माना, एक जगह काफिर है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके बाद जो फतवा दिया उससे रुजू है। 1 मिनट, अच्छा, एक जगह मुसलमान मान ले किसी को, सुनो, एक जगह उसको मुसलमान मान ले और फिर नहीं माना, मुसलमान का मुसलमान तो मान ली, फिर ये तो मुसलमान नहीं माना, तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि मुसलमान मानते तो बिदअती ना लिखते। 1 मिनट, बिदअती के पीछे आपकी नमाज होती है या काफिर के पीछे नमाज होती है? मैंने तो कह दिया कि मुसलमान ही, तो फिर आखिर मुसलमान ही के पीछे नमाज ना होती है? नहीं, बिदअती के मुसलमान होने ना होने में इख्तिलाफ है। 1 मिनट, मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शरीयत में ये बताओ कि नमाज किसके पीछे होती है? मुसलमान के पीछे होती है या बिदअतियों के पीछे होती है या काफिर के पीछे होती है? देखो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने बरेलियों के, बिदअतियों के, अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास अब जवाब नहीं है, अब तुम्हारे पास जवाब नहीं, हम समझ रहे हैं इधर उधर की बात कर रहे हो, तो खामोश रहे ना। हाँ तो जवाब खामोश रहे, ठीक है। हाँ बोलो।
आप बोलना नहीं, ठीक है? बोलो। मैं जो आपसे सवाल करूंगा आप उस वक्त जवाब ना दी, बाद में देना, ठीक है? हाँ सुनिए, बिदअती जो है ये मुसलमान है या काफिर है, इसका जवाब आप देंगे, ठीक है? दूसरी बात सुनो, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, ठीक है, तो ये पहले की बात है, कब की बात है, ठीक है? और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बिदअतियों के नजरियात सामने नहीं थे, इसलिए जो है बिदअतियों से, क्योंकि बिदअती जो है अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। अच्छा, क्योंकि बिदअती अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। अच्छा, उनके पीछे नमाज आपकी हो जाएगी? रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया कि हाँ हो जाएगी, बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन मौलवी थानवी के फतवे से बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी, जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? सुनिए ना, वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस फतवे से रुजू है। रुजू ये है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन देवबंद का ये फतवा है कि जिस तरह मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने अकायद व नजरियात इबारात व जो है फतावाजात की रोशनी में काफिर है, उसी तरीके से बरेलियत जो आला हजरत के अकीदा अकायद और उसके नजरियात को अपनाए हुए है, ठीक है, वो भी उसी तरीके से काफिर है। अब बात मुकम्मल हो गई, ये इस बात से रुजू है। बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात ये है, बात मुकम्मल हो गई। अरे सुने, अब आप आधा घंटा बोले हैं, मैं 5 मिनट भी ना बोलूं? बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोलो बोलो तो, बोलो। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब उनके अकायद व नजरियात कुफरिया व शरीकिया जो हैं वो नहीं पहुंचे थे, ठीक है, और ये बात उसी इबारत में वाजे भी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को वाजे भी किया उसी इबारत में, ठीक है, कि जो है मैंने वो आगे लिखा है इल्म गैब के ताल्लुक से, ठीक है, कि मैंने अब तो मैंने ये भी सुना है, ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है कि मैंने ये भी सुना है अलैह के सामने, क्या मैंने ये भी सुना है, क्या क्या इबारत है? एक मिनट रुको, किताब निकालने दो, क्या सुना है, रुको किताब निकालने दो, किताब निकालने तो पहले क्या सुना है, पहले तुम इधर उधर झूठ बोल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। किताब निकाल, झूठ तो तुम लोग बोलते हो, जो बात होती वही बयान करते। अभी तक जवाब देने से तासीर हो, उसके बाद झूठ बता रहे हो। सारी बातों का जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तुम क्या जवाब दोगे यार? अभी अब तुम्हारे ऊपर जो ये फैसला कौन करेगी? रुक जाओ, ये फैसला कौन करेगी जब तुम पे ये बात जाएगी? रुको जी जी, क्या है इसमें? अब मैं पूछ रहा हूँ, एक शख्स ने पूछा, हम पढ़ रहे हैं उसको सुनो। एक शख्स ने पूछा, हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? ठीक है, फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। हमारा तो मसलक ये है कि किसी काफिर कहने में बड़ी एहतियात चाहिए, ठीक है। अगर कोई हकीकत में काफिर है और हमने कहा तो क्या हर्ज हुआ, ठीक है। और अगर हमने काफिर कहा और हकीकत हाल इसके खिलाफ है तो ये बहुत खतरनाक बात है। हम तो कादियानियों को भी काफिर न कहते थे और वो हमें कहते थे। हाँ, अब जबकि साबित हो गया कि वो मिर्जा साहब के रिसालत के कायल है, तब हमने कुफ्र का फतवा दिया है। जी जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, अब इसमें आप क्या, पूरी मैंने बात पढ़ दी, चलिए अब आगे पढ़िए, आगे और पढ़िए। अच्छा, फतवा दिया, क्योंकि ये तो कुफ्र है। उसके सिवा उनकी तमाम बातों की तावील कर लिया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसी में देखो आवाम समझे जाएगी क्या बात कर रहे हैं मौलाना। बात मुकम्मल हो गई और बोलिए। उसके सिवा उनकी तमाम बातों की तावील कर लिया करते थे। वो तावीलें क्या है, बईद ही होती थी। हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं और अहले हवा काफिर नहीं। जी जी जी। अब चलो, अब इसका जवाब दो जी, और आगे पढ़िए। आगे ये सफा मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी मुकम्मल नहीं, पूरी बात करें। एक मिनट, ये सफा मेरे यहाँ मुकम्मल। अहले हवा काफिर, एक मिनट रुक जाओ, अहले हवा काफिर नहीं। हजरत वाला का ये तर्ज अमल सल्फ के क्या है, ये थोड़ी सी इबारत वहाँ मिटी हुई है, वो इबारत पढ़ने में नहीं आ पा रही है। अच्छा, आगे पढ़िए, वो उसको छोड़ दीजिए। एहतियात है अगरचे उनके एक मिनट रुक जाओ, वो इबारत वहां से नीचे से पूरी इबारत जो है वो मिटी हुई है मेरी किताब में, जो मेरे मोबाइल में वो किताब है, वो इबारत मिटी हुई है, वो इबारत समझ में नहीं आ रही। मेरे पास है मलफूजाते कमालाते अशरफिया। हाँ, इसमें मिटी हुई है। हाँ, वो मेरे मिटी हुई है। अगर तुमको व्हाट्सएप हो तो मैं तुम्हारे उसमें भेज दूं, देख लो। जी, चलिए ठीक।
आपने कहा मिटी हुई है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रही। अब चलो तुम बताओ। आगे यही लिखा है कि अब तो एक मिनट तुम वो बताओगे तो शायद वो इतने मतलब तुम अगर उसको पढ़ोगे तो हम शायद के भाई जाहिर सी बात है इबारत मिटी हुई पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तुम उसको पढ़ोगे तो वो बात हमें समझ में आ जाएगी। रुक जाओ। चलो क्या क्या कह रहे हो, उसके आगे क्या लिखी है? उसके आगे इल्म गैब के ताल्लुक से मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अब जो है इल्म गैब के हवाले से इसमें मोहतरम कोई बात ही नहीं है। नहीं है ना। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ो। 1 मिनट रुको। पढ़ो ना। हेलो हाँ पढ़ो। अब सुनो। हाँ पढ़ो। आगे लिखा हुआ है, हाँ एक मसला पूरी इबारत। एक मिनट वहां से पढ़ो। एक शख्स ने पूछा बरेली वाले, हम बरेली वाले, वहां से पढ़ो। क्या? वहां से पढ़ो। एक शख्स ने पूछा हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े, वहां से पढ़ो। अरे वहाँ तो वहीं से पढ़ो ना। तो वहां से पढ़ो। लंबी करना है क्या? अरे वहां से पढ़ो ना, लंबी बहस नहीं, वहां से पढ़ो ना पूरी बात। नहीं वॉइस को लंबी करना है क्या? हाँ देखो हम जानते हैं तुम किताब जो जिसकी तुमने कौन सी किताब खोली है? जी हमारे पास जो किताब है। कौन सी किताब है? वो कससुल अकाबिर है। मेरे पास मलफूजाते कमालाते अशरफिया है, तो मैं मलफूजाते कमालाते अशरफिया में ये बात पढ़ा हूं, तो तुम कससुल अकाबिर क्यों खोले? तो आप जो है आगे पढ़िए ना, आप वही तो मैं कह रहा हूं, यही हजरत की नकल ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, वो यही इबारत तुम वहां नकल है? बिल्कुल वही इबारत। तो पढ़ो ना, तो शुरू से पढ़ो ना, फिर पढ़ रहे हो तो मैं बताऊं कि गलत पढ़ रहे हो कि सही पढ़ रहे हो। मेरे पास भी वो मौजूद है, वहां से पढ़ो। एक शख्स ने पूछा बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ो, वहां से पढ़ो। क्या यार? हाँ वहां से पढ़ो। हाँ बोलो। बिदअती हजरात के यहाँ नमाज। हाँ। एक शख्स ने पूछा कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं? फरमाया हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने, हाँ हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें कहते हैं। हमारा तो मसलक ये है कि किसी को काफिर कहने में बड़ी एहतियात चाहिए। अगर कोई हकीकत में काफिर है और हमने ना कहा तो क्या हर्ज हुआ, और अगर हमने काफिर कहा और हकीकत हाल इसके खिलाफ है तो ये बहुत खतरनाक बात है। हम तो कादियानियों को भी काफिर नहीं कहते थे और वो हमें कहते थे। हाँ अब जबकि साबित हो गया कि वो मिर्जा साहब की रिसालत के कायल हैं, तब हमने कुफ्र का फतवा दिया है, क्योंकि ये तो कुफ्र सरी है। इसके सिवा उनकी तमाम बातों की तावील कर लेते थे, वो तावीलें बईद ही होती थीं। हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं, अहले हवा काफिर नहीं। हाँ एक मसला इल्म गैब हमारे गलत। अब यहाँ से ये इबारत दूसरी जा रही है जी। हजरत वाला का ये तर्ज अमल वो बात छूट रही है, वो अब आपके यहाँ बात दूसरी हो जा रही है। यहाँ से बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है कि नहीं। यहाँ से देखो, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ वो किताब में वो बात मौजूद नहीं है। चलिए वो भेज दीजिए। हाँ मैं वो भेज दे रहा हूँ। वो किताब यहाँ तक तो ठीक तुमने पढ़ा कि उसके सिवा उन तमाम बातों की तावील कर लिया करते थे कि वो तावीलें बईद ही होती थी, ठीक है। वो तावीलें बईद ही होती थी। हम बरेली वालों को अहले हवा कहते हैं और अहले हवा काफिर नहीं। बस यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ आप सुनिए। हाँ अब यहाँ से हाँ बोलो। हाँ अभी जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अब मैंने ये सुना, यानी इसके अब मैं उस किताब एक मिनट ये बात यहाँ से यहाँ जो सवाल मुताल्लिक जिसके मुताल्लिक सवाल किया गया है वहाँ वो बात मुकम्मल हो गई। बरेली वालों के मुताल्लिक चूंकि सवाल था, बात को सुनो मेरी। बरेली वालों के मुताल्लिक ही बात हो रही है। मेरी बात तो सुन दो ना यार, मुझे तो बोलने दो। ये बरेली वालों के मुताल्लिक सवाल था, ठीक है, और उसमें उन्होंने पूरी बात, और लास्ट में उन्होंने ये भी कह दिया कि बरेली वालों को हम अहले हवा समझते हैं और अहले हवा काफिर नहीं। यहाँ बात हो गई मुकम्मल। अब यहाँ इसके आगे तुम क्यों लेकर के आ जा रहे हो? बरेली वालों के बारे में उन्होंने पूरी बात कह दी कि अहले हवा काफिर नहीं होते हैं। ये बात उन्होंने मान लिया कि बरेली वाले काफिर नहीं है। इन्होंने इसका आगे भी हजरत की बात है वो। अब क्या बात? अब वो बरेली वालों के ताल्लुक से बात ही नहीं है, तो फिर अब दूसरी बात करोगे तो नहीं। इल्म गैब का अकीदा किसका है? बरेलियों का है ना यार। फिर वो बात बरेली, एक मिनट यहाँ इन्होंने सुनिए एक मिनट यहाँ पे इनकार कर रहे हैं, ठीक है एक मिनट देखो, फिर वही मैं बात मुझे बोलने दो। यहाँ उन्होंने यार पहले बात को सुनो। यहाँ इन्होंने ये इनकार कर दिया
کہ بریلی والوں کو ہم اہل ہوا کہتے ہیں اور اہل ہوا کافر نہیں ہے، یہ انہوں نے اہل ہوا آپ کو پتا اہل ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسی کوئی کچھ بھی ہو، پہلے بات کو سنو، یہ چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، ایک منٹ، چاہے اہل ہوا کا معنی بتا دیجیے۔ مولوی صاحب اہل ہوا چاہے جو بھی ہو، لیکن انہوں نے کہا وہ اہل ہوا کافر نہیں ہے۔ اہل ہوا کیا یار معنی؟ چاہے جو اہل ہوا چاہے جو بھی بنا رکھتا ہو، میں اس پہ مسلمان ہے، اہل ہوا سے معنی مسلمان ہے، تو انہوں نے کافر بھی نہیں کہا ہے، کافر سے انکار کیا؟ اہل ہوا کافر نہیں، اس کا انکار کیا؟ مسلمان ہے، یہ بتائیے پہلے۔ ایک منٹ، اہل ہوا کافر ہے، یہ آپ جواب دیجیے۔ اہل ہوا کافر ہے، اہل ہوا کافر ہے، ابھی تو اہل ہوا کافر کو کہتے ہیں، پھر بتاؤ نا۔ میں اللہ اکبر، میں کہہ رہا ہوں کہ اہل ہوا سے آپ کیا سمجھے؟ آپ بتاؤ نا کہ اہل ہوا کو کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ اہل ہوا تمہارا مولوی سنیے، اہل ہوا کو تمہارا مولوی کافر نہیں، بریلی والوں کو بریلی والے اہل ہوا کہہ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اہل ہوا کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ اہل ہوا سنیے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بدعتیوں کے عقائد و نظریات سامنے نہیں پہنچے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا چیز؟ جو بریلیوں کے بدعتیوں کے عقائد و نظریات تھے، یعنی مولوی احمد رضا بریلوی کو جو حضرات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو عقائد و نظریات تھے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تک نہیں پہنچے تھے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے عقائد و نظریات جو کفریہ شرکیہ ہیں نہیں واقف تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ بدعتیوں کو، ان کے احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں کو اہل ہوا سے تعبیر کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں کہتے تھے، یہ بدعتی، ٹھیک ہے۔ اب چلو ہم ابھی اس پہ تمہاری گرفت کر چکے ہیں، اور اسی پہ میں تم کو خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے تعویل کرتے تھے کہ اگر جو ہے اگر وہ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے کافر کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوئے اور ہم نے کافر کہہ دیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے تعویل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اگر تعویل کر لے تو آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی عبارت میں نے شرح مسلم للنووی رحمت اللہ علیہ سے میں نے دکھائی، میں نے وہاں بھی میں نے آپ کو یہ کیا تھا۔ چلو آگے بولو، نہیں، ٹھیک ہے، آگے بولو۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، مولوی احمد رضا بریلوی کے مرنے کے 8 سال بعد مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات اور اپنی جو ہے تحریرات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طریقے سے جو اس کی عقائد و نظریات جانتے ہیں، واقف ہیں اور ان کو مانتے ہیں، تو وہ بھی احمد رضا بریلوی ہی کی طرح جو ہے اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ جی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آخری بات جو کی ہے، یعنی احمد رضا بریلوی کے مرنے کے 8 سال بعد جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو ہے بریلوی حضرات جو مولوی احمد رضا بریلوی کے عقائد و نظریات سے اچھی طرح واقف ہیں اور جو ہے انہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بھی کافر ہیں۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ثابت کر دیا۔ اب سنیے، ٹھیک ہے، اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں شیطان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کس کو کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات یا عوام فیصلہ کرے۔ جب مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بریلوی شیطان ہے، تو شیطان اگر بریلوی اپنے اس کو شیطان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بریلوی مسلمان ہیں، اگر کافر سمجھتے ہیں تو بریلوی کافر ہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بات کر دی۔ بات جو ہے سنیے، آپ نے اتنی دیر بولا، ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں۔ آپ تم مجھ سے زیادہ بول رہے ہو، ریکارڈنگ سن لینا، مجھ سے زیادہ بول رہے ہو، بولو۔ نہیں، ریکارڈنگ ہم کم بول رہے ہیں انشاءاللہ، تمہارا زیادہ بولنے سے میرا کم بھاری ہے۔ چلو بولو نا یار، عوام جو ہے سنے گی۔ ہاں بولو نا، عوام ہی، ہم عوام ہی کے لیے تو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یار، یہ عوام ہی سنے گی بات، جی، عوام فیصلہ کرے گی، ہاں بالکل عوام فیصلہ کرے گی۔ نے جو ہے آخر بات کیا کہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا کہ جو ہے ان کے سامنے جب
अकायद और नजरियात उनके सामने नहीं आए थे, तो नमाज पढ़ने की हुस्न ज़न की तहत, क्योंकि बरेलवी हजरात, बिदअती हजरात जो है अपने आप को, सुनिए, खामोश रहिए, बीच में टपक टपक ना करें। कहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ बोला कि मैं कहा चलो चलो, मैंने कहा बात करो। तो चलो चलो, ये गलत मबहस क्यों है? ये गलत मबहस है, ये गलत मबहस है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब तक जो है उनके अकायद और नजरिया से वाकिफ नहीं थे, यानी उनके कहने पर कि वो खुद अपने आप को कहते थे मैं मुसलमान हूँ, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, इस वजह से मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की इजाजत दे दी। ठीक है, काफी नहीं समझते थे, लेकिन जब उनके अकायद व नजरियात वाज़ेह हो गए, यही मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा कादियानी के मुतालिक लिखा है कि कादियानों के मुतालिक कि जो है वो हमको काफिर कहते थे, लेकिन जो है हम उनको काफिर नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि उनका कोई ये कुफ्र वाज़े नहीं था, हम तावील कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब ये बात वाज़े हो गई कि वो मिर्जा साहब यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की रिसालत के जो है कायल हैं, तो हमने फिर उनको काफिर कहा। ठीक है, अब जब मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बरेलियों के, बिदअतियों के अकायद व नजरियात वाज़े नहीं हुए थे, छुपे हुए थे, तो हुस्न ज़न रखते थे, और हुस्न ज़न रखने की बिना पर कहा कि नमाज हो जाएगी, काफिर उनको नहीं कहते थे, बिदअतियों को। ठीक है, लेकिन जब उनका कुफ्र वाज़े हो गया, जब उनके अकायद व नजरियात पता चल गए, तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिस तरह ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी मुजद्दिद मौलवी अहमद रजा बरेलवी दायरे इस्लाम से खारिज है, जबान का इस्तेमाल सही करो, जवाब मुझे देने हो गया, इकरार करता है, इसलिए हम जानते हैं कि तुम इसलिए ये जबान इस्तेमाल कर रहे हो कि हम जवाब न दे पाए। सुनिए, बोलिए नहीं, बहुत आपने बोल लिया, अब हमारी बारी है। ठीक है, तो बात तो मुकम्मल हो गई ना। कहाँ मुकम्मल हुई? आप बोलते हैं तो आपकी बात मुकम्मल नहीं होती, और बोलो ना। हाँ सुनिए, ठीक है, तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके अकायद व नजरियात को जाना, समझा, फिर कहा कि जिस तरह मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर है अपनी तहरीरात से, अपने अकायद व नजरियात से, इसी तरीके से जो इसके मानने वाले हैं, जो इसके जैसे अकायद व नजरियात रखते हैं, वो भी उसी के तरीके से यानी मौलवी अहमद रजा बरेलवी के तरीके से दायरे इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं। और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लिख दिया, क्या यहाँ तक लिख दिया, एक किताब को लेके बैठे हो जिसमें जो है मौलाना, जो बहुत दूर की बात है, उस वक्त जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनके अकायद व नजरियात वाज़े भी नहीं हुए थे, उस वक्त की बात है। ठीक है, लेकिन जब उनके अकायद व नजरियात वाज़े हो गए, फिर एक ही बात को दोहरा रहे यार, बात मुकम्मल करो जल्दी। यही इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी को काफिर कहा, ठीक है, तो वो काफिर नहीं होगा जब तक कि जो है वो इस्लाम को बातिल झूठा ना समझे, उसके अकायद व नजरियात कुफरिया शिरकिया ना हो, उस वक्त तक वो काफिर नहीं होगा। ये शरा मुस्लिम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इस हदीस की शरा में लिखते हैं। ठीक है, तो यही बात तो हम कहते हैं, ठीक है, यही बात तो हम कहते हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो जो है उनको काफिर अहले हवा कहा। ठीक है, अहले हवा काफिर नहीं, क्योंकि उनके अकायद व नजरियात वाज़े नहीं हुए थे, और जब वाज़े हुए तो काफिर कहा। चलो बात मुकम्मल हो गई, मौलवी तो रजा खानी समझ रहे हैं, बात मुकम्मल ही तो मैं बोलूं। अब सुनिए, अरे मुझे बोलने तो कितनी देर बोलोगे यार? अरे भैया आप उतनी देर से बोल रहे थे ना। अरे यार तुम रिकॉर्डिंग सुनेगी, आवाम सुनेगी तो फैसला करेगी कौन कितना ज्यादा बोला है यार। अल्लाह अकबर, आप देखो मैं तो आपको सवाल पूछा, बस आप बोलने लगे। चलो तो बोलो, हो गई बात मुकम्मल हो गई, बोले है ना, बात मुकम्मल हो गई। आप ज्यादा बोले, हम तो कम ही बोले हैं ना। चलो तो बोलो, वो कम बोले हो कि ज्यादा बोले हो, तो वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद। चलो देखो अगर आपने हमको काफिर कहा, आपने हमको काफिर कहा, ठीक, लेकिन अगर हम आपको काफिर ना कहें तो क्या हम खुद काफिर हो जाएंगे? एक मिनट, अब मैं बात बोलूं? इसका जवाब फौरन दीजिए, अभी मेरी इसके मुतालिक बात देखो, अभी मैं जो तुमने अपनी पूरी बात की है और मैं तुम्हारी पूरी बात बहुत इत्मीनान से सुना हूँ जी, इसका जवाब पहले दीजिए। एक मिनट, अगर आपने हमें फिर वही बात देखो, अगर तुमने ये बात पूरी नहीं सुनी तो ये मान लेना कि तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो।
शिकस्त तो आपकी हो चुकी है। शिकस्त नहीं हुई है। मैं कहना कि शिकस्त करे कर दिया तो बात मुझे बोलने दो ना। अब अपनी मैंने कहा ना कि तुमने बरेलियों को है यार, तुमने तू बात सुनेगा नहीं, जवाब नहीं देगा तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट अगर आपने हमने जो सवाल पूछा कि अगर आप ये तुम सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे? तुमने बोल लिया तो मुझे बोलने दो ना, तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं। क्योंकि मेरी बारी है, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट तो तुम अपने सारे सवालात करके रह जाओ, मैं जवाब उसको जो है क्यों तुम इधर उधर भागते रहो? मैं इधर उधर भागूंगा? तुम्हारे किताबों के मुतालिक मैं बात करूंगा। तुमने जो बात की, इसका मतलब ये है तुम इधर उधर की बात करोगे, इधर उधर की बात करोगे। सवालात आपसे किए तो मुझको तो बोलने दो, जवाब नहीं दिया यार मुझको तो बोलने दो ना। मुझको बोलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे बोलने तो मैं बोल रहा हूँ। तुम अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई तो मुझे बोलने दो। एक मिनट मुझे एक मिनट में तुमने पूरी बात कही, मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। जो तुमने बातें कही, पहले बात को सुनो। जो तुमने बातें कही मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन, तुमने जो बातें कही है मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ ना। पहले सुनो, तुमने जो बातें कही है पहले ये बताओ। काफिर कहा। एक मिनट यार, फिर तुम सवाल कर रहे हो, बेजा सवाल कर रहे हो, फिर उधर ही वाली बात कर रहे हो। बेजा सवाल नहीं, उसी इबारत मैं क्या कह रहा हूँ तो उसे तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ, तुमने जो बातें कही कि मौलाना थानवी ने कुफ्र का हुक्म लगाया। एक मिनट सवाल का जवाब, एक मिनट मैं अपनी शिकस्त मान जाऊँ। एक मिनट तुम अपनी शिकस्त अभी मानोगे? कैसे मानोगे? का जवाब देखो, ये सुनने नहीं, ये हमें बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी शिकस्त की तरफ जा। तो बोलने दो ना, आप सामईन को सुना दो। और देखो, ये बोलने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, गोया ये शिकस्त की तरफ जा रहा है। कई दफा इससे मैंने क्या कहा कि ये मुझे अपनी पूरी बात इसने की और मैं बिल्कुल सुकून से सुना। मैंने इसकी पूरी बात सुकून से सुना और ये जो है जवाब देने से काफी रहा। आप हजरात गौर करें, मुझे बोलने दो। तुमने अपनी पूरी बात की ना। एक मिनट छोड़ना नहीं है। एक मिनट, तुमने अपनी पूरी बात की। देखो, आखिरी बात है। मैंने क्या कहा? तुमने अपनी पूरी बात की। एक मिनट, तुमने अपनी पूरी बात की। देखो यार, ये भाग रहा है। आपसे पूछा है कि जो है अगर आपने मुझे काफिर कहा और मैंने आपको काफिर ना कहा तो आपके मसलक का मौक़िफ़ क्या है? एक मिनट, अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई। इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसका भी जवाब दूंगा ना। पहले तुम्हारे जो पुराने सवाल आते हैं उसका जवाब दूंगा ना। फिर वही बात। हाँ चलो, तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई ना। तुम्हारी जो बात हो गई। कितनी सूरतें होती हैं? देखो हजरात, ये भाग रहा है। ये देखो, अभी जो इसने झूठ किताबों का नाम लिया है, मौलवी थानवी ने जब देखो यार, फिर नहीं बोल रहा है। सारे के सारे सवाल आपने छोड़ मुझे न बोलने देने का मतलब यह है कि तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो। मौलवी आरिफ, ये कौन फैसला करेगी, इसलिए मैंने ये जवाब दे दिया है। बयानी की है। अभी तुम न मुझे बोलने दे रहे हो तो इसका मतलब तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो। अगर तुम मुझे मुझे बोलने दो। अगर न बोलोगे, अगर मुझे बोलने न दिए तो ये मान लेना ये कौन फैसला कर लेगी। मैं तुम्हारी बातों की तरदीद कर रहा हूँ, तुम्हारी बातों को रद्द कर रहा हूँ। तुमने जो बातें कही मैं उसको रद्द कर रहा हूँ। और अगर इसका जवाब मुझे न देने दिए, हाँ मैं रद्द कर रहा हूँ। हाँ तो मैं एक मिनट, मैं कर रहा हूँ ना, मैं रद्द कर रहा हूँ। मैं रद्द करते हुए फिर इसका भी जवाब दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ ना। देखो पहले तुमने ये देखिए हजरात की ये मुझे जवाब नहीं देने दे, ये मुझे बोल नहीं दे रहा है। हजरात, आप मोहतरम सामीन, आप फैसला करें कि ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये शिकस्त मान लिया है, वरना ये मुझे बोलने देता। जितनी बातों को इसने ये बात कही, इसने कहा जवाब ना देना तेरी शिकस्त है। अभी मैं जो है बाहर से तेरी देख, एक मिनट, तू मुझे बोलने देना, तो मुझे बोलने देना। अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर दम है तो बात को सुन लेना, तो बात को सुन लेना। देखो फिर बाहर शरीयत की तरफ जा रहा है। अभी बात अपने मौलवियों की किया है और ये इधर उधर की बात कर रहा। मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने देना। मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे जवाब तो देने दे। हाँ बोलने दे। आप सुन, तूने ये कहा, एक मिनट, तूने ये कहा कि मौलाना थानवी ने जो है कुफ्र का हुक्म लगाया है, ठीक है। अल्लाह अकबर। आपने ये तुमने कहा ना, एक मिनट, तुमने ये कहा कि मौलाना थानवी ने सैफ यमानी में कुफ्र का हुक्म लगाया। पहले ये बता कि सैफ यमानी किसकी तसनीफ करदा किताब है? सैफ यमानी तो मौलवी मंजूर नोमानी की किताब लिखी हुई है। अब उसमें एक मिनट, अब उसमें मौलवी थानवी ने कुफ्र का हुक्म लगाया बरेली वालों के। एक मिनट, तो जो सैफ यमानी में मौलवी थानवी की तकरीर मौजूद है तो उसका माखज क्या है? किस किताब से? एक मिनट, किस किताब से? पहले बता, किस किताब में बरेली वालों को और आला हजरत को काफिर कहा थानवी ने? पहले देखिए हजरात, ये जवाब नहीं दे रही, ये बोलने नहीं दे रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है। और मैं इसी को साबित कर दूंगा कि तेरा मौलवी देवबंदी थानवी काफी हो चुका है। ये बोलने नहीं दे रहा है हजरात,
ये देखिए हजरत मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं हदीस शरीफ का ज़ाब्ता भी इसको बताना चाहता हूँ, सब बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अगर ये बोलने देगा तो मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ कि इसको, इसके मौलवी को मैं इसी इबारत में काफिर साबित कर दूंगा, इसी इबारत में इसके मौलवी को मैं काफिर साबित कर दूंगा, मौलवी थानवी को। लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैंने देखिए इसकी शिकस्त की सबसे बड़ी दलील क्या है, आप हजरात गौर करेंगे कि जब इसने अपनी पूरी बात की तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से इसकी पूरी बात को सुना हूं, लेकिन अगर जब मेरी बारी आई मुझे बोलने नहीं दे रहा है और मुझे बेजा खलते मबहस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अपनी शिकस्त मान लिया है। ये जान रहा है कि मैं इसकी तमाम बातों की तरदीद कर दूंगा, लेकिन इसने जवाब दिया। मैंने कहा ना इसका जवाब नहीं दिया, इसका मुझे जवाब नहीं दे रहा है। इसका जवाब मैंने इसको जो है फतहुल बारी का मैंने ये किया था कि एक भी जवाब नहीं दिया। ये जवाब मुझे नहीं देने दे रहा है। मौलाना इब्ने हजर अस्कलानी की इबारत मौजूद है और ये जवाब नहीं दे सकते। तो ये तो बोलने दो ना, अगर है तेरे अंदर दम, अगर है तेरे अंदर दम तो मुझे बोलने दो ना। मैंने क्या कहा, अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे बोलने दो ना। बयान किया है। अरे देवबंदी मुझे बोलने तो दे। अगर तेरे अंदर तू अपने आप को हक मान रहा है, हजरात ये हक सुनने नहीं दे रहा है, लिहाजा आप हजरात बेफिक्र रहे। मैं इसके जो एतराजात है, जो सवाल है, मैं यूट्यूब पे इंशाअल्लाह रहमान उसकी सफाई में, उसकी दलील में मैं सारी बातों को मैं पेश करूंगा। मैं इंशाअल्लाह सारी बातों में मैं इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। आप हजरात मैं बोलूं, बोलने दोगे? बोलने दोगे? मैं बोलूं? हाँ बोलूं। एक मिनट पहले बात को सुनो। तूने जितनी बात कही मैं तेरे बातों का जवाब दे रहा हूँ। हजरात गौर करें कि ये मौलवी जो है मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने तुझसे देखिए ये मौलवी खानी ये बता कि अगर तू मुझे काफिर कहे मैं तुझे काफिर ना कहूँ तो इंद शरा का हुक्म है, इसका जवाब दे। एक मिनट, इंद शरा का क्या हुक्म है? काफिर नहीं होगा तो जवाब दे तू। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या हुक्म है कि काफिर नहीं होगा? से बाहर चलो मैं एक मिनट हाँ बाहर शरीयत का चल इबारत बाहर शरीयत की पढ़। अबे पहले इसका देख ले हजरात, ये मुझे हजरात ये बोलने नहीं दे रहा है। आप हजरात देखें, ये जब मैं इससे सवाल कर रहा हूँ तो इसको मिर्ची लग रही है और ये बेजा सवाल मुझसे कर रहा है, तो ये बताएं कि भाई मैं इसकी तरदीद नहीं कर सकता हूँ। आप हजरात गौर करें, ये देवबंदी मौलवी मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अगर ये जानता है कसम खुदा तो अगर दम है तो मुझे बोलने देना। अगर दम है तो मुझे बोलने दे, दम है तो मुझे बोलने देना। 2 मिनट का तू इतनी देर बोला है, मैं 2 मिनट में वक्त मांगता हूँ। 2 मिनट में देखो तुम्हारी सारी बातों को बातिल कर दे रहा हूँ, अभी बातिल। और ये जो तुम्हारे जो सारे अखवाल जो तुमने सारी बातें पेश की है, मैं इसी में तो खामोश हो जा, मैं जवाब दे देता हूँ। खामोश हो जा, मैं सारी बातों का खामोश हो जा, मैं सारी बातों का मैं इसका भी जवाब दूंगा। ये हदीस शरीफ जो तुमने ये हदीस शरीफ का जो ज़ाब्ता पूछा है मैं इसका भी जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन मुझे बोलने देखिए हजरात देखिए ये मुझे बोलने की तरह मैं कह भी रहा हूँ कि इसका भी जवाब दूंगा। आप गौर करें कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि हदीस शरीफ जो ये हदीस शरीफ है मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। मुझे ये जानता है कि जब मैं बोल दूंगा और सारे दलाइल के साथ मैं इसका जवाब दे दूंगा तो ये जानता है कि मैं शिकस्त खा जाऊंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इससे ये तस्लीम हो गया, इससे ये मैं मान चुका हूँ कि अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका है। मैं इसको सारी हो चुकी है मेरे सवाल। चलो ऐसा है, अगर तेरे अंदर ताकत है तो पूरी बात को सुन ले। तू मान रहा है ना कि तू मान रहा है ना, एक मिनट तू ये कह रहा है ना कि मेरी शिकस्त हो गई है, तो अगर एक मिनट सुन ले मेरी बात को। एक हजरात गौर करे, मैं कह रहा हूँ कि इस हदीस शरीफ के मुतालिक भी मैं जवाब दूंगा, मैं इसके मुतालिक भी जवाब दूंगा। लेकिन इसने जो पुरानी बातें कही है कि मौलवी थानवी ने कहां से कुफ्र का हुक्म लगाया है, मौलवी मंजूर नोमानी की किताब में घुस करके क्या हुक्म लगाया है, मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये मौलवी नहीं सुन रहा है। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये तस्लीम कर चुका है कि ये शिकस्त खा गया। देखे हजरात मैं सारी बातों का मैं ये भी कह रहा हूं कि कसम खुदा के इस हदीस शरीफ का भी मैं जवाब दूंगा, मैं इस हदीस शरीफ का भी जवाब दूंगा। लेकिन पुरानी बातों को चल मैंने कहा ना कि मुझे बोलने दे, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैंने कहा चलो कितनी सूरत देखे हजरात मैं कसम खा चुका कि मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। हजरात गौर करें कि ये मैं इससे कह रहा हूं कि मैं इस हदीस शरीफ के मुतालिक भी जवाब दूंगा, लेकिन जो तुम्हारी पुरानी बात है मैं उसको वाज़ेह कर दूं पूरे आवाम के सामने। देखे हजरात आप हजरात गौर करें, ये देवबंदी मौलवी किस कदर राह फरार इख्तियार करे। राह फरार देखिए, ये राह फरार, ये देखिए राह फरार इख्तियार कर रहा है ये देवबंदी मौलवी। हजरात आप गौर करें, मैं इंशाअल्लाह
रिकॉर्डिंग जाने से पहले मैं 5 मिनट की गुफ्तगू अपने करके जो इसके मुतालिक जो जवाब मुझे देना है, मुस्लिम शरीफ में है, कई कुतुब में है, तो इस हदीस की कितनी सूरतें फुकाए कराम ने, फुकाए इज़ाम ने नकल की हैं, वो बता। ये जवाब देने से खामोश हो गए। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका जवाब, मैंने कसम खाया है कि मैं इसका जवाब दूंगा, मैंने कसम खाया है कि इसका जवाब दूंगा। ये देवबंदी भाग रहा है, ये देवबंदी भाग रहा है। आप हजरात देखे, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। आप हजरात गौर करें, देखे हजरात गौर करें, देखे हजरात, ये गौर करे, ये देखे कैसे मुझे हवा किसे कहते हैं? अहले हवा को तेरे मौलवी ने कहा है कि वो काफिर नहीं है। अहले हवा को तेरे मौलवी ने काफिर नहीं कहा है, मुसलमान माना है ना। तेरे मौलवी एक मिनट, तेरे मौलवी ने अहले हवा को मुसलमान माना है, जब तो उनके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। देखिए हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। देखो देखिए हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है का अकीदा जो था, तो इसी की तरदीद मैं कर रहा हूँ ना, इसके थानवी के अकीदे की तरदीद कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। देखे हजरात, देखे ये बोलने नहीं दे रहा है। ये मैंने इसकी पूरी बात पूरी संजीदगी से सुना, मैंने पूरी बात इसकी संजीदगी से सुनी, लेकिन ये जवाब नहीं दे सका। हजरात आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी तो उससे पहले मैं अपना 2-4 मिनट का तबसरा जो इसके मुतालिक, इसके जवाब के मुतालिक मैं इसका जवाब पेश करूंगा और इंशाअल्लाह आपके वो नजर नवाज करूंगा। ये सुनने के लिए नहीं, ये सुनेगा नहीं हजरात, गौर करें, ये सुनेगा नहीं।